Assalamu alaikum ji. Welcome back to an episode of Kahe, Kazi. My guest today was the brilliant Sherry Khattak. We get to speaking about the trajectory of music in Pakistan, about how he got all the way to Coke Studio from someone who was once entranced by a blue acoustic guitar in a vegetable market in Karachi, about the toll it takes on him when he thinks about all the people that look to his music for meaning. We were also joined midway through the podcast by the wonderful Saif Jatoi. Enjoy. 3, 2, 1. Sherry Khattak. How you doing, Sherry bhai? Sir, zabardast. आप बताएं. Alhamdulillah, bro. Alhamdulillah. It's super early in the day. And, you know. सुबह आपसे बोला कि सोने की जरूरत ही नहीं है. मैंने बोला आप सही बोलते हैं. सोता कौन है? जरूरत ही नहीं है. But you're in Karachi. Oh, can you talk about what you're in Karachi for? Yeah. We're here for. अभी पहले तो हम शो के लिए आए थे. Okay. It happened on 12th. उसके बाद we had a shoot aligned. तो वो 2 दिन का शूट था. आज खत्म हुआ. Alhamdulillah. Going back tomorrow. So yeah. Dude, hectic. Is this good? Do you usually do this stuff? Yeah, I love it, man. I mean, yeah. This is okay. Fantastic. How was the show first? ठीक था. अच्छा नहीं था. ठीक था. हाँ. It was one of the first shows जिसमें हमने sound check के बगैर बजाया. So Not a good idea. bad idea. Bad idea. In fact होना ही नहीं चाहिए. तो खैर वो obviously circumstances ऐसे कि हमारी flight 12 बजे की थी सुबह. Got cancelled. दोपहर साउंड चेक था. 6 बजे की फ़्लाइट मिली. फ्लाइट से लैंड किए डायरेक्ट ऑन स्टेज. सो नो प्रेप व्हाटसोएवर और बस बजा दिया. सो ऑब्वियसली जब इस तरह होता है तो यू नो. How often does that happen? दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट एवर हैपेंड. आई मीन पहली बार हुआ है. And आप जो है I think you've been playing now for 12 years. इफ अगर मैं स्टेज वाइज सोचूं कि कॉन्सर्ट्स वाइज इट्स बिन लाइक 7 साल. अल्हम्दुलिल्लाह. And कराकरम कब से? कराकरम को आई एम वेरी बैड विद डेट्स एंड ऑल बट आई थिंक कराकरम को हो गए कोई 3-4 साल. 3-4 साल हो गए. And so in your let's just say in your 4-year history playing all over the big cities at least. ऐसा कोई सीन नहीं था. नहीं. This is the first time. Okay. Go experience. Because last time also अगर आप याद करो, last time हुआ था आर्ट्स काउंसिल पे, एम्फी थिएटर पे हुआ था आर्ट्स काउंसिल के. एंड उस पे भी आपसे all the shit टक they're just like bro ठीक है. बहुत मुझे इतना अफसोस हुआ था because I was there at their sound check and I was blown away. मैंने कहा यार ये क्या शो होने वाला है. Because their sound is so, I mean, tight boys हैं सारे, you know. Zan, technically very good. Yeah, amazing. Drummers, Yusuf Daud. Yeah, killer boys. Yeah. Sound check पे हम लोग खड़े हुए and I'm hearing the sound. It's like fucking shit यार, क्या मज़ा आने वाला है. हमें बाद में आना था but I convinced everyone कि हम पहले आएंगे ताकि हम टकाटक को देखें, you know. Yeah. वो फिर obviously क्या कर सकते हैं. कुछ नहीं कर सकते. But I do feel कि we're so starved for these concerts now, especially after COVID. You must remember, COVID isn't that long ago when मतलब कोई तस्वुर ही नहीं था इस चीज़ का कि फिर से concerts होंगे and all those things. I think honestly I think most of us don't give a fuck. Like हाँ ठीक है bro, ठीक है, चल set कर ले, कोई बात नहीं है. We're still here. They don't understand mechanics of it. कि यार कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना टाइम चाहिए. बहुत से लोग बड़ा लाइटली लेते हैं इसको, ऑडियो सेटअप को. बड़ी प्रेप रिक्वायर्ड होती है. आई एम श्योर आपको भी थोड़ा बहुत पॉडकास्ट के थ्रू भी आइडिया हो गया होगा कि क्या यू नो. and more so by talking to people like you because and again to people music is music unless you're a proper fan. And the thing is you want casual fans क्योंकि masses में casual fans होते हैं, right? So through Coke Studio and all those things now you're getting casual fans and you want that to monetize yourself, right? लेकिन जो hardcore fan होता है वो समझता है कि metal में या इवन हार्ड रॉक में और से समथिंग लाइक पॉप में कितना फ़र्क होता है परफॉर्म करने में. यू नो, नॉट डिस्काउंटिंग एनीवन्स raw talent. Hassan Rahim, Tahaji are fucking phenomenal. Manu, all these guys, right? But they need, अगर तलाल कुरैशी आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तो they can just connect an iPad and go, right? Because उनकी सारी beats जो होती हैं वो एक जगह होती हैं. With you guys, it's like 17 different things जो need to work. You know, like one of your guys,
इसका नाम है बिलावल लाहौती, Yeah. द ड्रमर. Drummer. उसको सेट करने के लिए आपको 1-1.5 घंटा चाहिए होता है कि उसका सारा सिस्टम एंड देन ज़ेन ऑल दीज गाइज आप खुद. सो द कैजुअल फैंस रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट. So, but do you care? Like, I mean, आई थिंक फैंस की तो खैर है, बट जो शोज कराते हैं एंड यू नो द ऑर्गेनाइजर्स दे शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अ बैंड नीड्स अ साउंड चेक एंड दे नीड एम्पल टाइम टू सेट देयर इक्विपमेंट अप, और उनके शो के लिए बेहतर होता है, राइट? of course. सो इन द एंड गोल एक ही होता है कि अच्छा कॉन्सर्ट हो. तो बहुत से लोग इस तरह इस चीज़ को ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और बड़ा तंग करते हैं कि जी साउंड चेक बस कर लें, ख़त्म करें, बस करें. सो बट शुक्र है अब हम उसमें आ गए कि पहले तो हम रिक्वायरमेंट्स नहीं भेजते थे, कर नहीं सकते थे हम तो आप, कहते हाँ, बस जी ठीक है आ जाएंगे शो बजा देंगे. अब हम वी हैव दीज रूल्स जो कि हम भेजते हैं बिफोर डूइंग एनी कॉन्सर्ट. देयर आर सम रूल्स कि ये चीज़ें हमें इतना टाइम चाहिए बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, साउंड चेक सारा कुछ. सो वो बेसिक एक How satisfying is that you can set your own requirements? बड़ा कूल लगता है. हाँ, अच्छा लगता है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट फील होती है कि हाँ, सही है. लोग पूछते हैं शेरी भाई कुछ लेंगे. As a matter of fact, I would like a few things, man. Imagine that. When did you? Okay, so how old are you right now? I'll be turning 33, I think, this year. Yeah. Okay, and when did you start? When did you start music? 10th grade के बाद. So you must have been 15, 14, 15. I think so. Yeah. Yeah. Huh. And right off the bat, what did you start with first? Guitar? Yeah, acoustic guitars. Acoustic guitars. And how quickly did you realize that you were good or weren't good? जो भी क्या सीन था? पहले तो obviously the way I got the guitar was a funny story कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था. आई डिडंट नो शिट अबाउट म्यूज़िक. मैं बस सुनता था, घर में भी लोग सुन रहे होते थे म्यूज़िक थोड़ा बहुत, बट कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था इंस्ट्रूमेंट वाइज. मुझे कहीं फैमिली में भी कोई नहीं था दूर दूर तक. सो आई रिमेंबर गोइंग टू दिस प्लेस विद माई मामू रोड पे. तो वहाँ पर एक शॉप थी गिटार की. Okay. वो गिटार लटका हुआ था बस. कौन सा था? एकूस्टिक गिटार था, ब्लू कलर का था, ये मुझे याद है. Okay, all right. एंड वो ऐसी रैंडमली शॉप्स के बीच में एक शॉप थी, मतलब बड़ी ऑड जगह पे थी. अक्सर होता है ना गिटार म्यूजिक शॉप्स आपकी मॉल्स या इस तरह की जगह पे इतनी तरह. वो ऐसी जगह थी कि सब्जी वाला आया, एक दो और परचून की दुकान है और फिर एक गिटार शॉप आ गया आउट ऑफ नोवेयर. And this is in Karachi, huh? या इन कराची. Okay. सो मेरे लिए वो ऐसी चीज़ थी कि अच्छा जिस तरह सब्जियां बिक रही हैं, इस तरह गिटार भी मिल जाएगा यार. सो मैंने अपने मामू से बड़ा मासूमाना अंदाज में कहा कि मुझे दिला दें, बड़ा मुझे फिट लग रहा है. ऑब्वियसली ही वाज लाइक आ जाओ आगे, अब साथ चले मेरे. चलो आगे चलते हैं. Let's go look at bananas now. हाँ, सब्जी देखिए. तो वो उन्होंने मुझे टाल के ले गए, बट वो मेरी इमेजरी मेरे दिमाग में रह गई गिटार की. Okay. वो मुझे उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था गिटार का. Okay. तो बस वो ज़िद बन गई घर वालों से थोड़ी हुई कि मुझे चाहिए, और घर वालों को भी ये था कि यार नहीं क्यों दिलाएं इसको, और 4-5 हज़ार रुपये का था उस वक्त जो. तो बस डील एक स्ट्राइक कर ली घर वालों के साथ. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, सो मैंने कहा चलें अगर मेरा मैट्रिक में A ग्रेड आता है तो मुझे दिला दें. फिर दे वर लाइक हाँ इसका तो आना नहीं है, दिला कर लेते हैं डील. Brilliant that they had that kind of faith in you. They're like, बेटा, I was sure. So हुआ ये कि 3 ग्रेस मार्क्स दे के मेरा A ग्रेड आ गया. Alhamdulillah. So yeah, first A ग्रेड. Yeah. तो दिलाना पड़ गया. वहाँ से फिर Yeah. it started. That's super powerful, dude. Okay, and how soon did you realize, or did you realize at all ever? Sorry, yeah. The question, that you were good. The question. जब बजाया मैंने 1 साल तक बस मैं ऐसे ही रैंडमली बजा रहा था. नो आइडिया व्हाट आई वाज डूइंग. No chords, nothing. नथिंग, बस बजा रहा हूँ, शोर मचाया हुआ है, आउट ऑफ ट्यून. घर They're वाले so happy you got that A grade. They're like, यार ये सही है. A ग्रेड आगे, चलो फ्यूचर ब्राइट है बच्चे का, गिटार की तरफ बैट सीट है. सो करता गया. मेरी बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग थी जिसमें एक थे बंदा रहता है समीर भाई. We used to call him समीर भाई. Okay. And he was a singer. Okay. उस टाइम. तो obviously word got around. मुझे जब मैं नीचे कूल बनने के लिए गिटार लेके फ्लैट के लॉन में नीचे बैठा, वो ये तो करना पड़ता है ना, गिटार लिया लाजमी है bro. Come on. So I did all of that. तो
he was I don't know वो बिल्डिंग में आए हुए थे कुछ करने तो he saw me playing shit सही तो होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार देखो आओ तुम्हें मैं असल दुनिया दिखाता हूँ म्यूज़िक की Right. वो वाइब मुझे आई उनसे Okay. कि एक बंदा है तो मैं उससे मिलवाऊंगा उस तरह ना आई वाज लाइक यार आई वुड लव टू तो वो मुझे लेके गए एक स्टूडियो जौहर में All right. I used to live in Gulshan, so Johor wasn't very far from Okay. there. So वो लेके गए वहाँ पर एक दोस्त मेरा और भी साथ था What year is this? ये समझे when I got the guitar उसके बाद उसके एक साल के बाद So 2000 की किसी बात हुई 3-4 I think so हालात ख़राब हैं हाँ शहरी भाई हालात ख़राब हैं कुछ नहीं पता हाँ, okay, बस okay. गिटार है और मैं हूँ और मैं हूँ और दुनिया है, बबल bro. है हाँ so obviously but ये था कि आई न्यू द गाय उस बचपन से देखते आ रहे थे ना तो वो एक था कि हाँ हम गए तो स्टूडियो में गए जब तो एक नई दुनिया आई वाज लाइक यार ये तो कुछ और ही Was it a proper studio? Yeah, Mixer? it was a studio Yeah. and monitors, mixer, सब चीज़ें हैं वहाँ पर साउंड प्रूफिंग हुई भी है सारा कुछ तो आई वाज लाइक यार तो सीन है हाँ अब हुआ क्या वो वहाँ पर बस बैठे थोड़ी देर उन्होंने एक राउंड सा कराया वहाँ द गाय जिसका स्टूडियो था हिज नेम वाज जिशान याद वो अब मेरे ख्याल में चले गए हैं बाहर क्या है ब्रदर ऑफ महविश याद Okay, wonderful. so All right. ये नहीं उस टाइम पे कुछ नहीं पता था यही हो रहा था इसी तरह एल्डर ब्रदर सो स्टूडियो था उनका ही यूज्ड टू सिंग तो ही वाज लुकिंग फॉर अ गिटार प्लेयर दैट टाइम Okay. जब मैं उससे मैसी उसके सामने बजाया एक दो कॉर्ड उस टाइम तक मुझे 3-4 कॉर्ड्स आ गई थी साल हो गया था तो थोड़ा बहुत ग्रिप आ गई थी But लेकिन you did not quit at all. नहीं Because people quit after a year, you know. नहीं आई वाज लाइक यही है हाँ. मैं कज़न्स के घर जाके कंप्यूटर होता नहीं था मेरे पास कज़न के घर में कंप्यूटर होता था मैं जाके वहाँ पर इंटरनेट डायल अप कनेक्शन लगा के नोटेशंस प्रिंट आउट करके इतने बड़े बड़े पूरे किताबें बना के जो भी मिल रहा थी इन्फॉर्मेशन मैं उसको बस डाउनलोड कर रहा था सो वो चल रहा था सिलसिला तो जब मैं वहाँ गया बजाया थोड़ा सा चला गया घर हो गया टूर ख़त्म अगले दिन समीर भाई को ज़िशान याद कॉल किया यार आई एम लुकिंग फॉर गिटार प्लेयर वो बच्चा जो आया था उस दिन वो इंटरेस्टेड होगा बजाने में साथ मेरे फॉर सम शोज एंड स्टफ एज एन अकूस्टिक गिटार प्लेयर समीर भाई मुझे अगले दिन आया वो तुझे उसने ही लाइक्स योर प्लेइंग एंड I mean, I think he wants you in his band. I was like, okay, all right, yeah, let's do this. Let's do this, man. तो चला गया वहाँ पर अच्छी बात ये थी कि ऑब्वियसली कुछ गाने उनके थे आई वर्क देम आउट वहाँ से सीखने को मिला चीज़ें बजे हुए गाने थे रिकॉर्ड हुए हुए थे रिकॉर्डिंग्स की समझ आई कि गाने रिकॉर्ड कैसे होते हैं प्रोजेक्ट्स बनते हैं क्या है सारा कुछ तो वो at such an early age at a time where I was learning guitar उस टाइम पे साथ साथ I was exposed to this studio environment so मेरे लिए बड़ा एक it was something जो कि किसी को शायद नहीं मिलती इस तरह की अपॉर्चुनिटी yeah, it's the best kind of education so एक सा पैरेलल एजुकेशन हो रही है एक तरह से कि गिटार की भी और स्टूडियो की भी तो वो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया और बस गिटार बजाता रहा उनके साथ वहाँ पर और भी लोग आते थे रिकॉर्ड करने स्टूडियो होता था I mean उस ज़माने में I can't imagine there were many proper studios. This is 2004. हाँ So जाहिर है कम ही होते होंगे तो लोग तो आते होंगे yes, especially prominent people within the area उस एरिया में यही स्टूडियो था okay जो कि प्रॉपर इक्विप था एंड बड़े लोग आते थे वहाँ पर सो वहाँ फिर इफ़ आई गो इनटू डिटेल वो यही था कि बस उधर रिकॉर्डिंग्स होती थी तो उधर अदील भाई से मेरी मुलाकात हुई ही यूज्ड टू प्ले इन स्ट्रिंग्स बस सैफुल्लाह जो तो इज कॉलिंग मी कैन आई पिक इट अप बिल्कुल सैफ भा पॉडकास्ट में आई हूँ हाँ अचो था अचो वो फोन कर जो फोन कर जो वो बता के अंदर करवट दो इंशाल्लाह so when I was telling him कि भा Sherry wise your friend we'll all get together we'll have fun तब नहीं अब बोल रहा है यार ख्याल आ रहा है कि मैं आ जाऊँ सोच रहा हूँ सॉरी so जो स्ट्रिंग्स में होते थे हाँ या सो वो कोई एक एल्बम थी जिस पे गिटार्स रिकॉर्ड करने आए थे okay
और वहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक गिटार का थोड़ा क्रेज चढ़ा. Right. When I saw him play, you know, But and this is not hard. This is Santana style. देखिए मेरी इतनी एजुकेशन है इसमें, अब मेरी बस हो गई. My pretensions can only go so far. तो उनकी तो Santana style ये इलेक्ट्रिक गिटार है ना, it's not metal per se. हाँ, है ना? हाँ, okay, बिल्कुल. okay, उस टाइम तक मेटल भी और you know heavy music मैं नहीं सुनता था इतना. Okay. So when I saw him play and obviously Adil भाई भी used to be very helpful, बताते रहते थे मुझे किस तरह बहुत सारी चीज़ें बताई. पहली चीज़ जो समझ आई वो ये समझ आई, फॉर इलेक्ट्रिक गिटार्स गुड टोन हैज़ अ लॉट टू डू विद द मेन साइड ऑफ व्हाट यू प्लेइंग. Explain that to me, please. मतलब आई मीन अकूस्टिक गिटार क्या है कि मैं बैठा, मैंने बजाया, उसकी एक सर्टेन आवाज़ है, बस दैट्स इट. विद एन इलेक्ट्रिक गिटार इट्स प्लग्ड इन टू समथिंग, एन एम्प और अ प्रोसेसर और व्हाटएवर. Yes, yes, और उस प्रोसेसर के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें टोन शेपिंग में बड़ी काम आती है फॉर अ साउंड दैट यू लुकिंग फॉर, मे बी अ क्लीन साउंड और मे बी अ डिस्टॉर्टेड साउंड. सही. सो वहाँ से मुझे टोन शेपिंग और समझ आई कि अच्छा टोन्स इस तरह बनती हैं, गिटार इलेक्ट्रिक गिटार से ये साउंड्स निकल सकती हैं. तो वहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक गिटार का बड़ा, Again, at a super young age. हाँ, बहुत अर्ली, एक साल के पीरियड में समझे ये हो रहा था. Alright. तो फिर जिशान हैड टू लीव, वो यूएस जाना था, उन्होंने स्टूडियो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म. Yeah, so Okay, what was that stint? How many years was that? around 2 years, after Oh 2 years. man, and you had just thought कि यार ये Scene घर on हो रहा है, and- yeah, oh, ये dude. थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था. Yeah, and at a young age too, man. Okay, sorry, yeah, go ahead. हाँ, so वो हुआ. फिर अदील भाई, ऑब्वियसली उनसे मेरी इस टाइम पीरियड में दोस्ती हो गई थी बहुत. ठीक है. तो जब ये ज़िशान याद का स्टूडियो ख़त्म हो रहा था, सो ही गॉट सम गेयर एंड ही आस्क्ड मी कि यार अगर मैं स्टूडियो का गेयर लेता हूँ, वुड यू हेल्प मी आउट, यू नो, इन बिल्डिंग अ स्टूडियो. आई वाज लाइक यार ये मेरे लिए तो परफेक्ट बात है, बिकॉज एक ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है. What's he asking you when he's asking you कि आप हेल्प करो मुझे? यू नो सेटिंग इट अप, और स्टूडियो मुझे उस टाइम तक स्टूडियो का थोड़ा रिकॉर्डिंग्स भी करना आ गई थी, मिक्सिंग थोड़ी बहुत. सो आई वाज लाइक बेसिक आता था क्या करना है. कि अगर वो खुद नहीं हो तो आप काम करो. और अदील भाई भी इस तरह थे कि ही ऑलवेज फोकस्ड मोर टुवर्ड्स प्लेइंग गिटार रादर देन यू नो रिकॉर्डिंग एंड डूइंग दैट. तो वो उन्होंने इस तरह मुझसे, आई वाज लाइक यार आई एम ऑन बोर्ड, लेट्स डू इट. उनके घर स्टूडियो फिर सेटअप हो गया, एक वहाँ जाने लग गया. Which was where? It was in नाज़िमाबाद. Oh, okay. That was far away. That was far away, yeah. So वहाँ मैं अक्सर जाता था, मैं रात में वहीं सो जाता था स्टूडियो में ही. और यू नो और मैं बस वहाँ रैंडम चीज़ें कर रहा होता था वहाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वाज अ न्यू स्टूडियो, सो काम नहीं था एज सच, शुरू नहीं हुआ था कुछ. बट मेरा यह था कि यार मैं अपनी एल्बम रिकॉर्ड करूँगा यहाँ पर. Okay. So मैं बस डेमोज, अजीब चीज़ें, इलेक्ट्रिक गिटार अदील भाई का पड़ा होता था, Well, प्रोसेसर. that's super important. That's super important, ना? Experimenting like that, बस isn't it? ये बहुत ज़रूरी था. आई थिंक सारे गंदे गाने निकाल दिए, यू नो, सब बकवास जो Got भी that करते. shit out of your system. Now I only play good shit, man, because all the bad shit's gone. नहीं कोई सीन नहीं है. Alhamdulillah, सही है बात. नहीं. अच्छा मैं बोलूँ क्या? आप नहीं मानो. You don't have to agree with me. But हाँ, so you would just experiment and stuff, and then what happens? बस मैं रिकॉर्ड करता गया चीज़ें, एक एल्बम बन गई, और बस मैं करता रहता था इस तरह. तो आई थिंक फॉर अ म्यूजिशियन, फॉर मी स्पेसिफिकली, 2 फेजेस आते हैं मेरी लाइफ में. एक आता है कि मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करूं, और एक आता है कि मैं स्टेज पे जाऊं. ये दो चीज़ें बैक एंड फोर्थ मुझे अर्जेस होती हैं कि यार मैंने तब से अब तक. हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट. Okay. बिकॉज जब वो स्टूडियो फेज गुजर रहा था ना, तो एक पॉइंट आ गया था कि मैंने कहा यार मुझे अब कुछ बजाना है, लोगों के सामने बजाना है, यू नो. तो वो फेज आ गया था. एल्बम रिकॉर्ड हो गई थी, गाने बन गए थे, सब कुछ हो गया था, बट स्टेज पे जाना था. Isn't that a completely different experience? Like, because technically a studio recording is like this, right? एक दो और बंदे हों, देख रहे हैं, शेरी बजाना है, सही बजाना है, and you're like cool, focused, right? And then the stage is the opposite, no? हाँ. But you wanted both. I wanted because वो एक्सप्रेस करने का बेहतर तरीका था फॉर मी. आई मीन वो स्टूडियो में बैठा आई यूज्ड टू प्ले ना, तो वहाँ पे भी जो लोग होते थे यूज्ड टू सी मी प्ले एंड सिंग, तो मुझे उनका रिएक्शन देख के बड़ा मज़ा आता था. यू नो, आपको अच्छा लगता है कि आपको सुन रहे हैं लोग, तो वहाँ से एक वो ही कि यार अगर ये 2 लोग बैठे सुन रहे हैं, अगर इसी तरह 4-5 लोग और हो तो क्या मज़ा है, यू नो, एनर्जी आए. तो वो एक था कि बजाना है कुछ. Okay, और
आपके जहनो गुमान में दूर दराज तक क्या था कि कितने लोगों के सामने बजाना है, और वाज देयर नॉट अ नंबर? नो नंबर, आई वाज लाइक कितने भी आ स्टेज, जाएं? बस स्टेज इमेजिन किया हुआ था, Okay. स्टेज हो. ओके. सो ये जब हो रहा था तो आई रिमेंबर फेसबुक पे मैं बैठा हुआ था कंप्यूटर पे, तो मैसेज आता है एक बिलावल का, ओके. एंड ही वाज लाइक यार वी आर लुकिंग फॉर अ वोकलिस्ट, और हमारा जैम रूम यहाँ है, वुड यू नो कम एंड प्ले विद अस. दिस इज बिलावल लाहौती, या who's been on drums from the beginning. हाँ, उसका बैंड था उस वक्त ओवरडोज के नाम से. Okay, overdose. एंड वो उनको भी साल हुआ था आई थिंक बजाते हुए, एंड वो लोग क्या करते थे कि शोज पे जाके बजाते थे, और दे यूज्ड टू प्ले कवर्स एंड स्टफ ना, तो बड़ा अच्छा उनका बैंड था उस वक्त, कवर्स बहुत अच्छे बजाते थे. Still Karachi. Karachi. Overdose. Covers अच्छा बजा रहे हैं. हाँ, They want a vocalist. दे वांटेड वोकलिस्ट, उनका Okay. वोकलिस्ट चला गया था, कुछ हुआ था, आई डोंट नो. ठीक है. तो और उस वक्त वही टाइम था जब मुझे स्टेज पे जाना था. सही है. तो मैंने कहा यार लेट्स डू दिस, मैं जगह बताओ, मैं आ रहा हूँ. तो वो गुलशन में था उसका Good. उसका घर वापस. Yeah, ये चल रहा है. सो It's super powerful. तो वो Dude, so much music has come from Gulshan and all these places. ये जो सर्कल जिसका आप बात कर रहे हो, सोच है हमारी. yeah, true. So अब मैं वापस आया, बिलावल इन लोगों के बैंड की जैम हो रही थी, मैं गया उधर, वी प्लेड, और बहुत मज़ा आया. Yeah. मुझे फील हुआ कि यार सब फिट हैं. Yeah. और मज़े की बात ये थी कि वी प्लेइंग सॉन्ग्स जो कि मुझे पसंद थे, राइट. आई वुड लव टू प्ले देम Like what? लाइक स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, समर ऑफ 69, ऑल्टर ब्रिज के गाने. सो ये ऐसे गाने थे जो कि उस टाइम पे लोग कवर्स करते भी नहीं थे. Okay. तो एंड क्योंकि आई हैव अ टेनोर वॉइस, बाय टेनोर वॉइस आई मीन कि मेरी स्पीकिंग वॉइस हायर है फ्रॉम नॉर्मल रेंज, तो उस वजह से आई कुड सिंग हायर सॉन्ग्स ईजिली. Okay, so higher and lower. Lower मतलब ज़्यादा बेसी आवाज़ हो. Lower is basically baritone, हाँ, baritone. and higher are tenor. So Okay, tenors. Okay. I am a tenor singer, so Okay. मेरे higher pitch थी. तो ये गाने मेरे लिए और उनके लिए for the band to see me sing Sweet Child of Mine at a D major scale, मतलब जो पिच था वो अक्सर लोग करते क्या है कि जैसे D पिच के गाना है, तो for them to reach those notes they tune it down. कि लेट्स से एक लो कर लिया ताकि दे सिंग दोज नोट्स इजीली. बट फॉर मी उन्होंने भी ये किया जैम पे इसी वजह से कि वो टेस्ट करें कि यार ये गा सकता है कि नहीं. तो दे प्लेड ऑल द सॉन्ग्स इन स्टैंडर्ड, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, समर 69, सारे स्टैंडर्ड डीप है सब कुछ ना. तो वो मेरी आवाज़ ऊंची थी तो हो रहे थे वो सारे मैं तो गाता रहता था. तो वी क्लिक्ड एंड Again, this is with no prior training in singing. नथिंग मैन. आई मीन बस मैं गाने सुनता था, गाता था, सुन के गिटार पे निकालता था और गाता था बस. दैट वाज द प्रैक्टिस दैट आई वाज डूइंग थ्रू आउट. That's brilliant. फ्रॉम द स्टूडियो टाइम टिल यू नो, स्टूडियो में मैं कवर्स भी रिकॉर्ड करता था. बीच में स्टूडियो के फेज़ में मुझे वहाँ पर एक और बंदा मिला था जिसने मुझे साउंड कार्ड दिया था, आई रिमेंबर. वो मैं घर लेके आया था और मैं घर पे फिर रिकॉर्ड करता था इस तरह की चीज़ें, कवर्स एंड स्टफ. सो Sound card is audio interface. ऑडियो इंटरफेस, या. सो गॉट दैट राइट. So then घर पे भी you would did you have a mic? How were you doing this? इस तरह का ये माइक था. Okay, यही mic था. यही माइक था. हाँ. और ये भी मैंने उसे बोरो किया था, जिशान आया था. Okay. ऑडियो इंटरफेस कंप्यूटर के अंदर लगता था. साउंड ब्लास्टर का था, क्रिएटिव का साउंड कार्ड होता था उस टाइम पे. तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर लग जाता था, उसी के अंदर प्लग होता था. एंड सॉफ्टवेयर क्यूब नुएंडो था, या नुएंडो एक सॉफ्टवेयर आता था क्यूबेस से पहले, स्टाइनबर्ग का. सो वो उस पर मैं करता था काम, और बस रैंडम कवर्स एंड स्टफ यूट्यूब पे भी डाल दिए. आई डोंट नो भी है, उड़ा दिए थे मैंने, मुझे याद है. उड़ा क्यों दिए? What do you mean? यार बड़े बहुत बुरे थे. ठीक क्या हो गया आपको? What's it called? ठीक है, but and then so they figure out overdose. Yeah. Overdose figures out, what a name. Figure out कि okay, this guy he's not talking shit. ठीक है, ये कर लेगा अपना काम. हाँ, फिर क्या होता है? उमर बिलावल का बड़ा भाई होता था, ही यूज्ड टू मैनेज एंड स्टफ. तो ही वाज लाइक कि बताओ यार करें ऑन, वुड यू जॉइन स्टफ. आई वाज लाइक हाँ, लेट्स डू इट. Yeah.
You've never said no, huh? अभी तक कहानी में अरे yes. मैं अभी भी ऐसा ही हूँ by the way. माशाल्लाह, that's beautiful, dude. मना नहीं किया जाता. That's beautiful. बट तो बस शुरू हो गया सिलसिला, यू नो. अदील भाई की तरफ भी मैं जाता था, यहाँ पर भी आता था, यही होता रहता था. Okay. और पढ़ाई बुरी होती गई, फेल, तबाही मच रही है, घर वाले कह रहे हैं यार ये क्या कर रहा है, यू नो. सो Yeah. Were you making any money at all? none. Nothing. Yeah, zero. Okay. तो उस वक्त फिर जब बैंड सिचुएशन स्टार्ट हुई, शोज हम करते थे, आई डोंट नो क्या, मुझे तो याद भी नहीं है, 5,000 5-6,000 पर शो टाइप इस तरह कर रहे होते थे. Okay. बिकॉज वी वर लाइक जो भी आ रहा है लेट्स डू इट. Yeah. हमारी ट्रेनिंग ही हो रही है, हाँ. पैसे मिल रहे हैं तो अच्छा है, हाँ, कुछ भी मिल रहा है हाँ. अच्छा है, हाँ. कर रहे थे. फिर ये बड़ी फनी स्टोरी है. हमने ओरिजिनल्स बनाने शुरू किए उस वक्त. Okay. कुछ मेरे गाने जो एल्बम के पहले थे वो मैंने इनको सुना है कि यार ये कुछ गाने इसमें से कुछ हो सकता है. 1-2 गाने हुए उसमें से, उसको हमने बजाया, कुछ ऑब्वियसली ट्वीक किया बैंड के हिसाब से, होके बन गया. अब सोच रहे हैं क्या करें, अब क्या करना है, रिकॉर्ड कैसे होना है. और दीज गाइज न्यू नथिंग के यार रिकॉर्ड कैसे होता है, क्या है. So all of that was squarely on your shoulders. हाँ, वो मुझे पता था. हाँ. सो आई वाज लाइक, और मैं उस वक्त तक बता भी नहीं रहा था. उस वक्त मेरा था कि मैं सिंगर हूँ, मैं बजा रहा हूँ आप लोगों के साथ. तो ये बात जब आई कि यार रिकॉर्ड कैसे करना है, क्या करना है, तो आई वाज लाइक यार मैं थोड़ा सा, मैंने स्टूडियो टाइप से मैं हो के आ चुका हूँ, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें लेनी है Okay. टू बिल्ड अ स्टूडियो. Okay. सो मुझे बताओ अगर हम कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट अगर मिल जाए, सो आई कैन सेट इट अप एंड वी कैन रिकॉर्ड. I can set it up, make it work. हाँ, एंड मे बी वी कैन रिकॉर्ड अदर बैंड्स और अदर आर्टिस्ट एंड मे बी मेक समथिंग आउट ऑफ इट. और अपने भी गाने करते रहेंगे. और आंखें उनकी तो मतलब जो खुल बोला गई. कि यार लेट्स डू इट. आई रिमेंबर बिलावल ने अपनी अम्मी से उधार लिया. Oh wow, dude. आंटी ने उधार दिया. वी बॉट अ साउंड इंटरफेस प्रॉपर, 8 चैनल, ड्रम्स भी रिकॉर्ड करने थे. हाँ, ये हमारा था उस वक्त के, क्योंकि बिलावल ड्रम्स बजाता था एंड ही वाज वेरी यू नो क्या कहते हैं, उसकी एक वो थी कि मुझे ड्रम्स रिकॉर्ड करने, मुझे उसको सीक्वेंस नहीं करना डे 1 से. Okay. अक्सर होता था उस टाइम पे कि लाइव ड्रम्स मुश्किल से 2-3 जगह होते थे रिकॉर्ड, बिकॉज लाइव ड्रम्स नीड्स लाइक बड़ा साउंड कार्ड, बहुत सारे माइक्रोफोन्स, वो हर किसी के पास तो नहीं होते. हमारे पास तो बिल्कुल नहीं थे. जाहिर है. तो बिलावल क्या था कि यार ड्रम्स लाइव रिकॉर्ड करना है. तो मैंने कहा अच्छा लाइव रिकॉर्ड करना है तो हमें साउंड कार्ड एटलीस्ट 8 चैनल चाहिए होगा. ठीक है, मैं कर लेंगे. उधार ले लिया आंटी से साउंड कार्ड. Bilal's mom, thank you. थैंक यू आंटी. All of us thank you. You don't understand how many people thank you. Alhamdulillah. Yeah. So yeah, साउंड कार्ड लिया, लिस्ट बनाई क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या लेनी है. इससे पहले क्या को वाकई मैं बताना नहीं चाह रहा, बता सकता हूँ लेकिन बस जल्दी बता दूँ. एक बैड एक्सपीरियंस था. बिलावल के बड़े भाई थे, उनके एक दोस्त थे, ही इज़ अ वेरी वेल नोन म्यूजिशियन. उनके स्टूडियो में गया रिकॉर्ड करने गाना अपना एक ओरिजिनल. डिडंट टर्न आउट गुड. बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा. क्यों? You know, जब आप you know when you're a senior and a junior artist comes in, अक्सर they like pressure you with the fact कि यार you know nothing, you know. तो no offense but होता है. Sure. No. Who's taking offense, man? You haven't even named anyone. नाम भी नहीं लिया तो. So yeah, वो हुआ. And, okay, so that is the hallmark of seniority in Karachi, at least Pakistan mein, where people do that. They push you down. Did that introduce any doubt in your minds at all? कि यार maybe we're not as good as we're thinking, कि हम ये invest भी कर रहे हैं, आंटी से लोन भी ले लिया और स्टूडियो भी बना रहे हैं. हाँ, सॉरी थोड़ा स्टोरी आगे पीछे हो गया. आंटी से लोन इसके बाद लिया. ओके. पहले ये जब हुआ तो उसके बाद ये रिएक्शन था कि we have to do it ourselves. Oh, so not even for a second did you doubt yourself कि यार हम अच्छे नहीं हैं. नहीं. We were like, नहीं, this guy is an idiot, which he is. No, we were like यार हम ये नहीं कह रहे थे कि उन्होंने गलत किया हमारे साथ. We were like कि हमें fully you know space नहीं दी गई करने के लिए काम. एंड जब
बिकॉज मैं ज़िशान याद के स्टूडियो में काम करता था, आई रिमेंबर ही यूज्ड टू गिव स्पेस टू आर्टिस्ट कि आप अच्छा आपने इस तरह करना है, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स. प्रोड्यूसर की एक इनपुट होती है बट नॉट commanding an artist to do. No, you have to let the artist be the artist, man. So Yeah. create a space, breather दें आप आर्टिस्ट को, थोड़ा वो easy रहे, तभी वो अच्छा परफॉर्म करेगा. सिंपल सी. वहाँ हमें थोड़ी ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर हुआ उनकी तरफ से, particularly on mixing and this the way the song sounded. तो वो उससे हम फ्यूल हुए कि यार हमने स्टूडियो करना ही करना है, खुद करना है. Dude, that's a fucking fantastic reaction, isn't it? No, because most people would just be like, यार अगर ऐसे ही लोग हैं, but you were like, bro, लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद लोग हैं, खुद करें. हम ही लोग हैं. तब फ़ायदा ये था कि हमें पता था ना, तो थोड़ा उससे एज हो गया कि हाँ हम कर सकते हैं. अगर हमारी जगह कोई और होता, जैसे मैं स्टूडियो के पहले मुझे इनपुट हो गया था या थोड़ा सा समझ आ गई थी, अगर नहीं होता तो हाँ मे बी वी वुड हैव क्विटेड या छोड़ दिया होता, बिकॉज हमें कोई और रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ से, राइट. सो एक बड़ी अच्छी बात थी उस वक्त कि वी रिएक्टेड इट दिस वे कि यार करते हैं अपना. फिर हमने लोन लिया, आंटी ने साउंड कार्ड दिलाया. निशान हयात से ही मैंने 2 मॉनिटर्स थे, स्पीकर्स लोन मैंने लिए उसके स्टूडियो में. उसने नए लिए तो उसके पुराने वाले ऐसे ही पड़े हुए थे. He was kind enough to give it to me कि यार तुम ले लो. That's brilliant. हाँ, so yeah, तो वो मिल गए. उसमें मसला था एक, उसका ट्विटर ख़राब था, बट फॉर अस वो भी काफ़ी था उसमें, वही. तो उससे हमने शुरू किया. सही. एक पहला क्लाइंट आया, उसको रिकॉर्ड किया और गाड़ी चलना शुरू हो गई. स्टूडियो भी थोड़ा बहुत बनना शुरू हो गया, आहिस्ते आहिस्ते करके चीज़ें आने लग गई. उसी पैसों से हमने स्टार्ट बिल्डिंग इट अप कि यार मिक्सर आ जाए, हेडफोन्स, माइक भी ले लिया, ड्रम के माइक्स लिए बिलावल ने. तो ये इस तरह करके एक सेटअप बन गया. तो या वहाँ से फिर बिलावल यूज्ड टू रिकॉर्ड कवर्स एंड ड्रम कवर्स, ये सारी चीज़ें. मैं उसको मिक्स विक्स करके उसको हेल्प करता था कि यार हम करते हैं इस तरह का ना, अपने भी कवर्स करते रहेंगे और ये भी करते रहेंगे. जब उसने एक कवर रिकॉर्ड किया तो जुल्फी भाई ने बिलावल को मैसेज किया. एक मिनट, आई एम सॉरी आई वाज डिस्ट्रैक्टेड. जुल्फी भाई ने ओके, व्हाट ईयर इज दिस? ये समझे स्टूडियो के बाद बेसमेंट सीजन 2 का टाइम है. ये Nescafe Basement season 2. I think Saifbaz here. Okay, order has been restored. We have been joined in the studio by Saif Jatoi, who wherever he walks chaos follows, and so we had to make some adjustments. अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, कैसे हैं? सैफ भाई अपने फट भाई वो कहानी कंटिन्यू करें पहले आप लोग. आके बदमाशी खुद आए, लेट आए, अबे चलो ना. उसके बाद नहीं, मैं खुद सुनना चाहता हूँ. जी हाँ. So you were saying Bilawal Lahuti used to perform his drum covers, and you used to help edit and all those things, and then all of a sudden out of the blue on Facebook. On Facebook. And this is 2010. 2011. बिलावल को डेट्स याद होती हैं एक महीने के हिसाब से. मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं याद होता क्या महीना क्या साल. सही बस है, था कोई टाइम. और कराक्रम वाज नॉट अ थिंग. नहीं, ओवरडोज था बस. ओके, ओवरडोज था. एंड जुल्फी मैसेज, व्हाट डज जुल्फी से? सो सॉरी, या तो बिलावल ने भेजा था या जुल्फी ने मैसेज किया, आई डोंट नो. रिस्पॉन्ड किया आई थिंक बस दे कम्युनिकेटेड और बात शुरू हुई कि बेसमेंट का बेसिकली सीजन 2 का ऑडिशन हो रहे थे. तो उन्होंने फिर बिलावल को मैसेज किया कि यार वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कमिंग टू लाहौर एंड डू दिस शो. एंड व्हाट वाज बिलावल्स आंसर? बिलावल को समझ ही नहीं आई बात, राइट. तो आई वाज लाइक झूठ ना बोलो. हाँ, तो वो आया, सबसे डिस्कस किया उसने आके ना. और इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट राइट नाउ, मैंने कहा यार नहीं करो, ठीक है. एंड अब पता नहीं मुझे क्या फेयर था, क्या थी, क्यों मैंने कहा वो. बट यू वांटेड टू परफॉर्म, यू वांटेड टू रिकॉर्ड इन द स्टूडियो. हाँ, फिर क्या सीन था? वो ऐसा शायद मेरे दिमाग में था कि यार ये चला जाएगा लाहौर, फिर बैंड रुक जाएगा, इस तरह की मेरी थॉट थी. थोड़ी सेल्फिश बात थी. बट ये मैंने वैसे कभी नहीं बताई, बट उसको मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था इस बात से. लेकिन फिर लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार नहीं, आई मीन
ऑब्वियसली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए Yeah. एंड यू नो तो ही डिसाइड किया करते हैं हाँ. चला गया लाहौर सीज़न 2 हुआ हाँ. पूरा सीज़न हुआ सीज़न 2 में एक गाना था जिसके लिए एक सिंगर चाहिए था Okay. तो बिलावल उस टाइम पे हमारा कोई 1-2 कवर्स आए हुए थे इंटरनेट पे रॉक टाइप इस तरह के नूरी का हमने एक गाना किया था ये डले हुए थे पेज पे तो बिलावल ने ऐसी जब when they were looking for vocalist तो बिलावल ने सुना दिया जुल्फे को कि यार ये हमारे बैंड का ये एक वोकलिस्ट लड़का है है। हाँ ये एक लड़का है ये भी आ सकता है और ये आप बस बोलो। कभी नहीं बोलता ही नहीं है, ये तो आएगा इंशाल्लाह. तो उन्होंने सुनाया उन्होंने कहा फिट है फिर पता नहीं क्या हुआ ज़ाहिर है अब जब मैं बेसमेंट और कोक में उनके साथ हूँ आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे आप पागल हुए होते हो Yeah. आप कहते हो यार बस जो भी है ठीक है हो गया तो उस टाइम पे उन्होंने बैंड जो हाउस बैंड था उन्हीं में से ही उस्मान वॉज अ गिटारिस्ट आग बैंड में होता था वो बेसमेंट में भी था उससे वो गाना गवा लिया वो भी रॉक सिंगर ज़बरदस्त सब कुछ फिट उसने वो गाना गा दिया कुछ नहीं हुआ उसके बाद ना मुझे कॉल है ना कुछ बिलावल वापस आया हमने एक गाना किया अंधेरा वॉज अ सॉन्ग ओवरडोज के थ्रू हमने रिलीज़ किया वीडियो हमने की मैंने खुद एडिट की उस टाइम पे मैं ऐसा कि मैं कुछ भी बस आ जाए मैं बस सीखता रहता था तो ऑडियो प्रोडक्शन के साथ मैं वीडियो एडिटिंग भी स्टार्ट मैंने कर दी थी देखना बस प्रीमियर और ये सारी चीज़ें That's ridiculous. Yeah, that's brilliant. That's good. That's बिकॉज brilliant. Yeah. हमें ज़रूरत थी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती रही ना कि यार हमें अच्छा ऑडियो आ गया रिकॉर्ड हो रहा है अब वीडियो करनी है अच्छा वीडियो कैसे करें शूट हो गया अच्छा एडिट करनी है ओके ऐसे करनी है इंटरनेट देख लिया अच्छा प्रीमियर डाउनलोड सीख लिया Let's just go. Yeah. करते Let's just रहे keep going. काम चलाते रहे एडिट करी वीडियो पूरी अपलोड हो गई टीवी पे भी चली सब कुछ हुआ जुल्फ़ा ने देखी बिलावल ज़ाहिर ऐड था उनके पास उन्होंने देखी अगले दिन मुझे एक गाना रिलीज़ होने के एक दिन के बाद मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता जुल्फ़ाई एंड ही वाज लाइक कि यार वो क्या ज़बरदस्त गाना है Thank you. प्रेजिंग एंड एवरीथिंग आई वाज लाइक और फिर उन्होंने कहा तुमने एडिट भी खुद की है और प्रोड्यूस भी खुद किया गाना प्रोड्यूस भी मैंने किया था एडिट भी मैंने किया था तो नीचे शरी कटे ये सब लिखा था बताया उस टाइम पे था कि जो क्या लिखना है ना कलरिस्ट ये वो सब लिखा हाँ तो वो जब देखा तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की कि यार मुझे अपना याद आ गया कि मैं भी ये करता था कि आई यूज्ड टू डू ऑल द साउंड प्रोडक्शन ऑफ माई बैंड वीडियो भी एडिट मैं खुद करता था बजा सकते थे हाँ बजाते नहीं थे नहीं बजाते भी थे बजाते भी थे कॉल यू नो कॉल द बैंड उसमें जुल्फ़ाई खुद ही करते थे सब Wow, dude. सो इवन बिफोर दैट EP इवन बिफोर EP में भी सो उन्होंने उसी टाइम पे कॉल पे कहा कि मैं अगला सीज़न कर रहा हूँ बेसमेंट का आप आ रहे हैं. एंड आप आ रहे हैं That's fantastic. आई वाज लाइक ऑल राइट Yeah. ऑन मैंने कहा लेट्स डू इट आप बस मुझे बताया हम कॉल अवे आई विल बी देयर बिलावल को मैंने बताया उन्होंने बिलावल तो और एक्साइटेड का साथ जाएंगे यार मज़ा आएगा ये वो बस लाहौर चले गए Yeah. लाहौर गए तो फिर ऑब्वियसली सीज़न 3 हुआ उसमें वो एक नया एक्सपीरियंस Is that the time you moved to Lahore? नहीं Okay. You were still This in was the Karachi. first time I was coming लाहौर हाँ. और कराची में रहता था 3 महीने के हम इधर आए थे उसमें जैम्स और शूट सब कुछ हुआ हाँ. और जब आए तो एक नया एक्सपीरियंस How did your family react to that? Because this is now big. हाँ Being on Nescafe Basement is big. हाँ वो they were always happy with the fact कि यार अच्छा हाँ. टिकट भेज रहे हैं जहाज़ का घर बुला रहे हैं लाहौर ठीक है भाई And they'll be paying, है ना? they'll be paying Yeah. सब कुछ you know जो भी तो वो they were like full on board उस टाइम तक उनको समझ भी आ गई थी ये बात कि कुछ हो रहा है Okay. Alhamdulillah. वो पॉइंट निकल गया था कि जब बिकॉज स्टूडियो भी चल रहा था वहाँ से थोड़ी बहुत इनकम भी हो रही थी जो बिलावल के घर में था वी टू स्प्लिट एंड स्टाफ तो वो जब मैं काम करता था उसके मुझे एक परसेंटेज मिलती थी बस एक बिजनेस मॉडल बनाया था छोटा सा और बस तो वो उनको समझ आ गई थी अच्छा कमा रहा है तो चलो भूखा नहीं मरेगा ठीक है That's all they're worried about, you know. That's यही all है they're worried कि about. बस man. खड़ा Yeah. हो जाए पैरों पे Yeah, राइट yeah, तो हुआ ये लाहौर चला गया बेसमेंट किया पूरा सीज़न उसमें एक गाना कि कल नहीं वो सॉन्ग जिसमें हमने सीज़न 3 में किया था एक निशान भी था
अनजाने 3 गाने मैंने गाए उधर शायद भाई कल नहीं एक कराक्रम का भी तो है ना. यस वही Same one, dude. गाना आप अगर वो सुनेंगे आपको हंसी आएगी सीजन 3 बिकॉज वो उस वक्त ऑब्वियसली सब छोटे थे हाँ. और स्केल भी हाई था उस वक्त. ये था मेरा ये था कि मैं हाई गाने गाऊँ बस यू नो विदाउट रियलाइजिंग के हर सिंगर का हाई स्केल होता है बट ज़रूरी नहीं है कि वो बस ऊंचा ही गाता रहे यू नो. सो मेरी उस वक्त ये थी कि मैं बस ऊंचा गाना गाता रहूँ. वो कल नहीं भी अगर आप सुनते you'll hear that कि मैं बस ऊंचा गा रहा हूँ यू नो. सो वो ऑब्वियसली हुआ 3 गाने किए. फिर उन्होंने जुल्फ़ा ने मुझे ये भी कहा कि तुम गिटार्स भी बजाओ बिकॉज ओवरडोज वाला गाना जो अंधेरा था उसमें गिटार्स सारे मैंने किए हुए थे. तो उससे भी उनको हुआ कि हाँ इसकी गिटार सेंस है थोड़ी. अच्छा जुल्फी भाई even at that point was one of the biggest producers in the country. Yeah. So he's watching all the best guitarists in the country. He knows, right? So that's a good litmus test then for you कि यार हाँ ठीक है फिर मैं ये सब काम इस लेवल तक कर सकता हूँ कि ये मुझे बोल रहे हैं कि बजा लो. You know because he wasn't going to if you weren't good. He wasn't going to be like यार बजा ले कोई बात नहीं. ये कॉन्फिडेंस जब आया जब पहला गाना जैम हुआ एंड I was given the room to do whatever I wanted with guitars and sounds और सब कुछ. And he was very game with the fact very sport कि यार अच्छा कर रहे हो हाँ, कर bro. फिट है गाइड करते थे ये करो बट बड़े सपोर्टिव थे. That's ridiculous that someone like that people like that exist. You know. You don't. There's not a lot of them in Pakistan. But अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपको. बिल्कुल. Yeah. एंड इनका जुल्फा का आई थिंक उनका उसमें भी ये है आई थिंक DNA में कि ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर टैलेंट ऑल द टाइम. Right. Even now. As we speak I think अभी वो ढूंढ रहे होंगे कहीं ढूंढ रहे हैं. He's not paying attention to you anymore. He's like हो गया ना चलो moving on. so वो कांस्टेंट है. That's तो fantastic. बेसमेंट बना ही इसी तरह है. हम लोग सब हमें सब उन्होंने नहीं ढूंढा है राइट. उन्होंने ही ला के एक प्लेटफॉर्म में हमें अपॉर्चुनिटी दी तो हम अब एक पॉइंट पे कि हम अपने गाने बना रहे हैं वे गोइंग प्लेसेस एंड स्टफ. सो हाँ तो फिर वो बस बेसमेंट से फिर जब सीज़न 3 ख़त्म हुआ वापस आया कराची. सीज़न 3 का आखिरी शूट था. हम मुझे याद है हम शूट से जा रहे थे एक गाड़ी में जुल्फ़ा थे और 2-3 लोग और थे. हमें पीछे बैठा था जुल्फ़ा वाज लाइक यार आगे बैठे थे पीछे घूम के पूछते हैं यार मुझे बता तू प्रोडक्शन में मेरी हेल्प कर सकता है इस सीज़न. ख़त्म हो शूट ख़त्म हो गया था. शूट के बाद फेज़ प्रोडक्शन का आता है इसमें मिक्सिंग मास्टरिंग सब चीज़ें हो जाती. मैंने और एंड ही वाज लाइक अभी तू ना जा रुक जाओ और ये ख़त्म करके जाओ. 3 महीने पूरे हो गए थे शूट के. मैंने कहा यार नहीं तो आप बोलते नहीं है. हाजिर आप बोले आप मैं ऑन हाँ हो रहा है बस करें लेट्स डू इट. जुल्फा ने कहा कोई मसला नहीं तुम मेरे घर रुक सकते हो कर लेट्स डू इट करते हैं. सीज़न 3 पूरा प्रोडक्शन गुजारी साथ तो वो भी 2-3 महीने टिल द रिलीज That's चलता such a रहा. surreal experience, dude. And that's 6 months of just 6 महीने with the बस best music. musicians in the fucking dude. That's Training great. full. Yeah. बहुत इतना सीखने को मिला. अल्हम्दुलिल्लाह. सब चीज़ें बेसिक सब. ये भी पता चला कि मैं पहले जो बिलावल हम लोग जो मिलके स्टूडियो में करते थे क्या क्या गलतियाँ करते थे सारी चीज़ें समझ आई. Of course, कि ऐसे होता है ये होता है. ख़त्म हुआ प्रोडक्शन ख़त्म हुई वापस कराची आ गया. फिर जुल्फ़ा के पास जो प्रोजेक्ट आते थे ना ही यूज्ड टू कॉल मी अप कि यार फला प्रोजेक्ट आया है या कोई ऐड है कुछ भी बेसमेंट के बाद. आई यूज्ड टू फ्लाई मी टू लाहौर to help him in the production bit. Shari bhai, at some point you have to realize, obviously Zulfi bhai supports everyone. लेकिन अगर आपको if he's going to those lengths, then maybe you were better than other people. I think that's a consideration that you have to give yourself at this point. ना दो मैं और सहबा दे देंगे. हाँ यहाँ तो not only इस हिसाब से दूसरा फैक्टर ये भी है कि नेचर भी इंसान की बहुत कम right. I think he's a lot of fun to work with. I think फन के अलावा भी ही इज रिस्पेक्टेबल. मतलब ही नोज हाउ टू गिव रिस्पेक्ट. मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं यार. हाँ आई थिंक कंपैटिबल होना भी बहुत मैटर करता है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि जुल्फा ने मुझे बिठाया और एंड आई वाज डूइंग स्टफ फॉर हिम एंड ही वाज लाइक गुड अब मैं जा रहा हूँ. ऑब्वियसली ही हैड टू ट्रेन मी इन लॉट ऑफ वेज. मतलब बड़ा कुछ सिखाया सो ऐसा नहीं था कि मैं बस प्रोडक्शन में गया एंड आई वाज लाइक द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. I was the pill. जुल्फी भाई अब आप चिल करें कोई मसला नहीं है. ऐसा नहीं था कि मैंने संभाल लिया सब. नहीं बिकॉज आई थिंक ही सॉ समथिंग कि यार हाँ पेशेंस है
बिकॉज आई थिंक ऑडियो प्रोडक्शन हर चीज़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है. Sure. आपको घंटों बैठना होता है एक चीज़ पे और यू हैव टू फिक्स इट. Yeah. नहीं होती तो There's no out. Yeah. हाँ, There's no so out. Yeah. वो चीज़ आई थिंक है मुझ में पेशेंस. मैं मेरे ख्याल में मुझसे पेशेंट शायद ही कोई, मैं मतलब बहुत पेशेंट. अल्हम्दुलिल्लाह. वैसे पेशेंट ठंडी तबीयत. ठंडा कोई वो नहीं. तो वो भी हो सकता है एक रीज़न कि हाँ एक लिंक था, फ्लेक्सिबल था, अच्छी एक बॉन्ड बन गया, केमिस्ट्री अच्छी थी, तो इस तरह गाड़ी चल गई. तो वो प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे बुलाते रहते थे. Wonderful. That's awesome, man. अब हो रहा है प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हर महीने 2 एक प्रोजेक्ट्स तरह. मैं आई वाज फ्लाइंग मतलब पागलों की तरह, मतलब हर महीने में कोई 4-5 फ्लाइट्स लाहौर कराची इस तरह हो रहा है. Yeah. टू द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक यार ये तो ज़्यादा हो रहा है. मतलब घर वाले भी कह रहे हैं बेटा जहाज़ गिर जाएगा, क्या कर रहे हो, यू नो इस तरह के. ज़ाहिर है घर वालों के तो आते हैं ना कि बेटा हवा में हो, ये वो इस तरह की चीज़ है, होती नहीं. मैंने कहा यार ये तो बात सही है. फिर मुझे समझ आई कि यार कराची में उस वक्त कुछ हो नहीं रहा था. मैंने एक स्टूडियो फिर लगाया बिलावल. हाँ, फिर इस इन द मीन वाइल सीजन 4 के बाद बिलावल होल फैमिली शिफ्टेड टू लाहौर. Oh wow. Okay. हाँ, व्हेन दे केम हियर तो वो स्टूडियो ख़त्म. अब मैं वापस जब आया बेसमेंट के बाद, मिक्सिंग के बाद, यहाँ कुछ नहीं था मेरे पास. कुछ भी नहीं था आपके पास. Yeah. स्टूडियो सारा वहाँ शिफ्ट हो गया. सही. एंड आई वाज लाइक ओके, ज़ीरो. हाँ. थोड़े से पैसे बेसमेंट से जो मिले थे उससे मैंने 1-2 चीज़ें ली, मॉनिटर्स और सारी चीज़ें, और मैंने अपने फ्लैट में ही स्टूडियो बना लिया घर में. और घर बड़ा छोटा सा है तो बस एक कमरे में मैंने बना दिया, और घर वाले भी फुल सपोर्ट कि हाँ बेटा करो. तो मुझे याद है मैं बस रिकॉर्डिंग्स करता था छोटी मोटी लोगों की. थोड़ी बेसमेंट के बाद थोड़ी वो भी बढ़ गई थी कि हाँ एक बंदा है जो कि म्यूजिशियन है, टीवी पे भी देखा हुआ है, तो गाने भी रिकॉर्ड कराने आ जाते थे लोग. Did someone famous come? नो. No, that's good. Okay. क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. हाँ, of course. इससे के काम आपका सामने बिल्कुल. Yeah. तो वो होता रहा. फिर समझ आई जब लाहौर बहुत दफ़ा जाता रहा तो जुल्फ़ा ने कहा यार तू यहाँ शिफ्ट हो जा. और आप नहीं तो नहीं बोलते. ना तो कभी नहीं बोला. तो लाइक या हाँ मुझे लगता है. Yeah, it made sense at the time. How did your घर वाले take that? पहले तो था थोड़ा कि पता नहीं क्या करोगे, यू नो देख लो. फिर ऑब्वियसली जुल्फ़ा का भी एक वो था कि एक यू नो वो फैक्टर ज़्यादा हो रहा था उस वजह से कि हाँ ऐसे बंदे के पास जा रहा है काम करने जिसका प्रॉपर एक सिस्टम है, राइट. प्रोड्यूसर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स. और मैं उनको घर वालों को कहता था कि जी पाकिस्तान के बेस्ट प्रोड्यूसर है, आई मीन कम ऑन, राइट, इनके पास नहीं जाऊँगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. हाँ. इस तरह करके मैंने एक पेज बनाई और चला गया लाहौर. सही. जुल्फ़ा के घर रुका. शुरू में कोई ऑब्वियसली जगह नहीं मिल रही थी, ना कोई ऐसा सीन था कि मैं कोई रेंट टाइप ढूंढूं, तो मैं जुल्फ़ा के घर ही रुका. How long? For like a year, I guess. Nobody sponsors people like that, man. Zulfi bhai, brilliant man, mashallah. Nobody does that. Who does that, dude? Nobody does. बिल्कुल. I'm like, yeah. I mean, obviously, मैं यही कहूँगा कि I mean, जब आपको किस तरह सपोर्ट करता है ना, you're like यार पता नहीं, वो एक फीलिंग होती है कि आप कहते हो यार ये बंदा ना होता तो क्या करता मैं, यू नो. सो वेरी सपोर्टिव, ऑलवेज बिन देयर. वो जब हुआ तो अब मुझे याद है कि इस टाइम सीज़न 5 शुरू हो रहा था. वो कौन सा वाला सीजन है? सीजन 5 जो आखिरी सीज़न था, तो जिसमें लड़की छोटी बच्ची भी थी. थोड़ा भेजो. हाँ, जिसमें वो छोटी बच्ची भी थी और वो सब थे. बोलहू. हाँ, बोलहू. यस. लड़ जा अपनी जंग तू. ओह डूड, मैं रोता हूँ. उसमें तो तेरा भी गाना था, बड़ा फिट गाना था यार. उसमें शायद नहीं था. तो कौन से में था? मेरा सीजन 4 में था. कौन सा वाला था? फना था. फना. अच्छा, मैं तुझे अजीब बात बताऊँ, मैं तुझसे कितनी बार मिला हुआ था, तो मैं यूट्यूब पे उसका वीडियो नहीं देखा था फना का. देखा भी था तो मुझे पहचानने में नहीं आया, बट वो गाना मेरी प्लेलिस्ट पे होता था और मैं रेगुलर सुनता था. जब मैं सोचता था यार ये शहरियार खट्टक कौन है? ये पठान साला ये बड़े गाने इस तरह गा रहा है, ये खट्टक है साला, ये कैसे गाने गा रहा है, अल्लाह की कसम. बाद में मुझे एहसास हुआ भाई ये तो ये है. अच्छा, सैफ से मैं पता कब मिला हूँ?
ये फिर बहुत आगे जाके सब शिफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो आई स्टार्ट प्लेइंग सेशंस फॉर पीपल, गिटार्स और सारा कुछ। बेसमेंट 5 के बाद मेरी एज अ गिटारिस्ट ज़्यादा वो बन गई थी इमेज एज कम्पेयर टू वो, बिकॉज सीज़न 5 में मैं गाने नहीं गाया था कोई। ओके तो और सीज़न 5 के ही टाइम पे अराउंड 5 के टाइम पे मुझे पहला सेशन ऑफर हुआ था फ्रॉम मीशा शफी टू प्ले गिटार्स फॉर हर। वंडरफुल। व्हाट सॉन्ग? इन हर शोज, मतलब लाइव शोज। ओके वंडरफुल। तो शी वाज लाइक मेरे साथ गिटार्स, दैट्स अ बिग डील, राइट? हाँ, उस वक्त मैंने जुल्फा से भी कंसल्ट किया, आई वाज लाइक यार ये सीन हो रहा है, आपको क्या लगता है? आई वाज लाइक यार करो, दैट्स अ गुड थिंग, एक्सपीरियंस है। और ऑल्दो मैं सिंगर था, बट आई वाज लाइक ये भी एक सीन है, करते हैं, क्यों नहीं? हाँ, कर दी। Of course. Alhamdulillah. Listen, this is your superpower, dude. Come on. But how was that experience though? Because, okay, so was Misha, was the kind of music she was doing, was it close to the kind of music that you wanted to do? Or? नहीं, एक चीज़ अच्छी थी कि जो बैंड था मीशा का, जिसमें फरहान बेसिस्ट और ये सारे लोग थे, फरहान अली, तो जो नूरी के साथ बजाता है वो। हाँ, so and he used to manage Misha, so he was the one who came to me कि यार इस तरह हम ढूंढ रहे हैं। उससे मुझे फरहान used to be in basements jam and used to do sound for the jams, तो वहाँ उसने मुझे बजाते हुए देखा and he was like यार तुम्हारे गिटार टोन्स बहुत अच्छे हैं, and I used to work a lot on my guitar tones. Sure. I was like यार मैं बड़ा प्रोड्यूसर की तरह सोचता था, बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग उसमें था, तो मैं बहुत अपने टोन्स को बड़ा उस तरह देखता था कि यार अच्छी हो, साउंड्स गुड, सारा कुछ। उसने मुझे कहा कि यार सर, तो हमने रीडिज़ाइन किया उसका सारा द शो, पूरा उसके गाने थोड़े नए तरीके से डिज़ाइन किए। वहाँ से फिर आई गॉट इनटू सेशंस। सही। तो सेशंस फिर साथ साथ एक और फरहान सईद के साथ भी मुझे, फिर फरहान ने मुझे ऑफर की कि इस तरह करके आ जाओ, एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। फरहान के साथ बजाना शुरू हो गया। फरहान के शो पे हमारा एक म्यूचुअल है, आमिर अली द बेसिस्ट। उसने एक शो था, जिस कराची में शो था, तो वाज लाइक मेरा दोस्त आ रहा है, उससे मिलना और शो पे आ रहा है, इस तरह करके। तो सैफ फिर वहाँ met him. And what year was this? You'll know what year was this? मुझे नहीं याद। 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए। 2017, 2016, हाँ ऐसे ही 16-17। Yeah. And how was the music scene like in 2016-17? It was getting better. हाँ, शोज हो रहे थे, कॉन्सर्ट। और इस टाइम पे मैंने मतलब बहुत ट्रैवल किया। कराकोरम was a thing? कराकोरम हमारा फरहान के साथ बनाया। कराकोरम बेसिकली हुआ सीजन 5 के बाद नेस्कैफे, तो सेशंस भी हो रहे थे और कराकोरम भी था, पर कराकोरम बहुत ऑफ था उस वक्त, बिकॉज मेटल। हाँ, और हमने गाने बनाए भी थे, हमने बस नाम चेंज कर लिया था, हम काम करते थे, बट सारे बिजी थे बड़ा इधर। लेकिन ओवरडोज इज कराकोरम देन? हाँ, उस टाइम यस वही है। 3 लोग सेम थे, 2 लोग ऐड हुए लाहौर से, वो बैंड बन गया। हो गया, कूल। उस वक्त जब हम मिले थे ना, तो सारे नशाई जी, सारे बाद में ये बड़े सेलिब्रिटी हैं, ऐसे बातें वही बता रहा हूँ ना। कॉन्सर्ट के बाद सारे आके बैठे हैं, सब नशे कर रहे हैं। हम लोग तो, मैं तो नहीं करता, मुझे पता है, आप तो नहीं करते। उन्होंने कहा यार ये, मैंने कहा यार ये बैठा है चुप करके पप्पू बच्चा बन के, बिल्कुल यार शरीफ, क्या मसला क्या है? बिल्कुल आपकी तरह सूफी है यार, ये नहीं करता वार्ता। अच्छा, हम फीफा शीफा भी, मेरा ख्याल है उस वक्त हम लोग सारे मिलके फीफा खेलते थे। तो जब भी आमिर अली वाले आते थे, बिकॉज आमिर अली आई मेट, हमने बिलाल खान का कॉन्सर्ट करवाया था इन 2011 इन KL in Limcock Wing. Yeah. So I was one of the organizers. Small fucking world, huh? Small fucking world. तो वहाँ I met आमिर अली, जहाँ से मेरी उसके साथ पर्सनल दोस्ती हो गई, क्योंकि हम लोग रोज रात घुमाते भी थे इनको। तो फिर मैं जब पाकिस्तान आया तो लाहौर गया, तो आमिर से कांटेक्ट हुआ, तो फिर मिलना जुलना, खैर फास्ट फॉरवर्ड। तो उस वक्त भी शहरियार खटक साहब जो हैं, वो फीफा खेल के सब हो गया, शराफत से अपना बैग लटका के और अपनी सफ़ेद गाड़ी में बैठ के उन्होंने कहा भाई मैं तो रहता ही हूँ, मैं जा रहा हूँ वापस। मैंने कहा जा भाई तू जा। That's awesome. They were pissed off ना, कह रहे जब भी आता है बैठता नहीं, घर चला जाता। अब मैं घर से जाता था, बिकॉज मैं कराची जब भी आता था मुझे घर जाना होता था, मैं लाहौर में रहता था। I was like I have to pay visits, वरना घर से जूतियाँ पड़ेंगी। तो नाराज होते, थोड़े नाराज होते थे। मैं वही कहता था, अबे भैंचोद क्या मसला है यार।
Okay, हट गई ना एक बंदे की। so अब मतलब for no reason at all, मतलब अच्छे खासे रैपर्स होते हैं, उनके पॉडकास्ट जो होते हैं 18+ नहीं होते। अब शहरी खटक का पॉडकास्ट आएगा 18+। नहीं तो रेटिंग कौन देता है? सब खराब हो गया काम यार। नहीं खराब तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं, रेटिंग कौन देता है? शहरी को सुनने वाले कोई 15 साल के बच्चे तो हैं नहीं, और जितने हरामी 15 साल के बच्चे हैं आजकल भाई, तू छोड़ ही दो। ये वो नहीं होता, बुड्ढी पापा नहीं होता जो आके बैठ जाता है, मैं बताता हूँ बेटा होता क्या असल में। What's it called? What were we talking about? ठीक है, so you guys met. What were your first impressions besides the fact that ये पप्पू बच्चा है, in terms of his skill? मतलब to be very honest, जिस तरह के फरहान के गाने हैं तो उसमें कोई स्किल इसको इतना कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं है। But he could hold all of it. हाँ, मतलब वो तो ऑब्वियसली उनके साथ बजा रहा है, इट्स अंडरस्टूड यार। कोई ऐसी एरे गहरे को थोड़ी लाते, फरहान इज अ बिग नेम, तो वो जाहिर है सोच समझ के। बट ऑब्वियसली मुझे थोड़ी पता था कि क्या सीन है। असल में क्या सीन है? असल में कब पता पड़ा आपको क्या सीन है? यार आई थिंक फना का जब मुझे रियलाइज हुआ इसने कहा है तो सोचो फोन पे देख रहा, अबे तू ये। फिर मुझे आमिर वाले कहते थे हर वक्त, कहते हैं यार शहरी बहुत हरामी वोकलिस्ट है और वो गिटार शिटार बजाता है, लेकिन शहरी को तुमने लाइव सुन लिया तो तुम्हारी फट जाएगी। अच्छा, हम आपस में जब बैठते हैं जाहिर है रात को, तो जो रियलिटी होती है जिसकी आप खुल के बात करते हो कि भाई किसी सिंगर का कहें भाई ये फलाना एक है मशहूर, कुछ एक आध सिंगर है जैसे आमिर और ये लोग सब कहते थे भाई बेकार है, फलाना बेकार है। एक और हार्ड रॉक सिंगर है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके लिए वो कहते थे कि वो स्टूडियो आर्टिस्ट है। शहरी की चीख सुन ली ना तुम्हारी फट जाएगी, और यही हुआ। फिर इसका वैसे तो आई थिंक फना वाज द फर्स्ट वन जिसमें प्रॉपर मैंने सुना। उसके बाद जब ये एल्बम आई है तो फिर तो भाई सी एंड सॉरी मीशा शफी पेप्सी, उसमें तुमने गाया नहीं है। हाँ, बट उसमें गाना वो आई थिंक तुम्हारा था या क्या था, क्या चक्कर था? हाँ, उसमें मेंशन हुआ था कि मीशा शफी फीचरिंग शहरियार खटक। अच्छा, एक बंदा जो सिर्फ गिटार बजा रहा है उसको कौन लिखता है कि भाई फीचरिंग शहरियार खटक? मैंने लड़का तो मैं नेक्स्ट लेवल जा रहा है। वो उसकी स्टोरी थी कि वो गाना पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स होता था, मीशा के साथ मैं गिटार बजाता था, तो शी सेड कि यार इस तरह हमने ना शो के लिए गाना करना ओरिजिनल, तो हम लोग जैम्स रखेंगे और विल फिगर समथिंग आउट, लेट्स मेक अ सॉन्ग। तो मुझे याद है सुबह जैम होते थे हमारे 11-10 बजे 11 इस तरह। ऐसा नहीं होता यूजुअली? ऐसा नहीं होता यूजुअली। तो वो एक नया मोड था। तो मुझे याद है जब और घर मीशा के घर में होते थे तो जैम कर रहे थे, तो वो रिफ बेसिकली जो उस गाने की है वो बस बैठे रैंडमली बस वो बज गई, मतलब बजा रहा था मैं, शी वाज लाइक यार ये है, दिस इज इट। शी इज क्लासिकली ट्रेन्ड ना मीशा शफी? I think so, yeah. I think so. Not sure. Okay. Not कोई sure. इतना ज़्यादा नहीं जितना मुझे पता है। It's all natural. It's all, so she's also so she understands where you're coming from. Where you're also not classically trained. No. Oh, that's fair. Okay, yeah. So she understands, yeah. हाँ, so एक obviously एक उस टाइम तक कनेक्शन भी था, cause हमने tours भी किए हुए थे, US, UK सारा कुछ बैंड में था, तो बड़ा एक बॉन्ड था। फरहान, मैं, मीशा, नवीन, तो हम लोग गाने बनाते थे। तो वो गाना इसी तरह बना था कि वो जो रिफ थी ना, उसी रिफ के अराउंड वो पूरा गाना बन गया था, बैठे बैठे पूरा स्ट्रक्चर बन गया था। सो और वो मेलोडी भी वो गिटार रिफ ही थी। अगर आप वो सुने ना गाना, मैं मेरे ख्याल में द फर्स्ट वन, तो वो इसी तरह था। तो ऑब्वियसली शी वाज काइंड इनफ टू गिव ड्यू क्रेडिट के मिलके बना सारा कुछ। और उसमें एक पार्ट गा तो नहीं रहा था, बस वो एक कॉयर टाइप पार्ट था, वो भी था, तो बस वो एक हो गया इस तरह। और तो या वो उसकी ये स्टोरी थी उस गाने की। ऐलान जंग का क्या सीन था? वो ऐलान कोविड था। ओके। हमें याद है हम लोग 2-3 गाने हमने बनाए हुए थे, डेमोज शेयर किए हुए थे ग्रुप के अंदर, एंड कोविड जब आया तो आई वाज लाइक यार यही टाइम है। बिकॉज उससे पहले होता क्या था कि कोई भी गाना रिकॉर्ड करना है, कभी कोई नहीं है, कभी किसी के सेशन है, कभी मैं जा रहा हूँ। तो जब कोविड आया, कोविड से 3 महीने पहले मैंने सेशंस छोड़ दिए सारे। फरहान सईद, मीशा शफी। एक फेसबुक पोस्ट थी बेसिकली, वो होता है ना जो आता है आपके टाइमलाइन पे कि 4 साल पहले आप यहाँ थे, 3 साल पहले। रियलाइजेशन मोमेंट। एक रियलाइजेशन मोमेंट था मेरे लिए कि जब
फेसबुक मैंने खोला 4 साल पहले आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर विद फरहान सईद, इस तरह एक पोस्ट थी। तो ऑब्वियसली मैं कराक्रम था उस वक्त एंड आई थिंक तूफान आ गया था, रिलीज़ हो गया था। हाँ, तो उसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स था, बट ऑब्वियसली वी वर गेटिंग शोज और उस तरह कोई सीन नहीं था। तो जब वो पोस्ट देखी तो मैंने रियलाइज़ किया यार ये मैं ऑब्वियसली मज़ा आ रहा है, आई एम टूरिंग द वर्ल्ड, आई एम प्लेइंग शोज, बट अपना म्यूज़िक मैं नहीं कर रहा, यू नो, आई एम जस्ट प्लेइंग फॉर समवन एल्स, which is good, but not it's paying my bills, but personally मेरी satisfaction नहीं थी, because मुझे पता था कि as a band we could do so much more. Now you knew, now you understood. हाँ, because हम लोग जब भी जैम करते थे नया गाना बन रहा होता था, बिलावल मैं हम लोग हमारा इतना टाइम 6 साल 7 साल से साथ एक ऐसा बॉन्ड है कि आंखों में देख के हम एक दूसरे को बता देते हैं कि यार ये बज रहा है, यू नो, व्हेनेवर वी प्लेइंग हम एक दूसरे को देख कोई बात नहीं करनी पड़ती और बज रहा होता है सब, यू नो। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कोऑर्डिनेशन थी। तो फिर मेरे लिए बड़ा टफ डिसीजन था कि यार सेशंस नहीं करने, यू नो, because छोड़ने। because I can't figure out how, but I'm sure you were getting good money. Yeah. And you must have been really comfortable because these were all इनके साथ भी आपका एक bond था इन लोगों के साथ, फरहान and all those, you know, Misha and all those. They're all like family, right? Yeah. सबके साथ. It was very hard for me to, you know, part my ways with them. Did they understand the decision? Yes. Yeah, all of them. All of them. They were like हाँ ठीक है। हाँ, because I remember जब तूफान जब आया था, फरहान shared the song on his Instagram सारी जगह, तो he was supportive enough to, you know, acknowledge कि yes, वरना किसी के बैंड में अगर मैं गिटार बजा रहा हूँ, राइट, एंड आई एम अ सिंगर, और सिंगर अक्सर होता है ना कि यार अल्फा एक ही होता है ब्रो। हाँ, वो अल्फा एक ही होता है, एक सिचुएशन हो जाती है ना इस तरह की। ये सेम है, ये हर जगह सेम ही होती है। बट या ही वाज सपोर्टिव इनफ टू, यू नो, रिस्पेक्ट द डिसीजन दैट आई मेड विदाउट एनी, यू नो, गॉड ऑफ ऑन अ गुड नोट, और ख़त्म हो गया। मीशा के साथ भी इसी था। मीशा का तो ये था कि शी मूव्ड टू कनाडा, तो वो वैसे ही थोड़ा कम हो गया था। All that nonsense also that was happening. वो अलग एक सिचुएशन से, या तो वो वैसे ही वो शोज कम ही हो रहे थे, बट मैंने वो उनको भी बता दिया था कि मैं इस तरह आई एम क्विटिंग। And what did she say? She was a good luck. Yeah. And फिर obviously होता गया, फिर चलता गया, कार्यक्रम के गाने फिर बनाए। फिर मेरे छोड़ने के 2-3 महीने के बाद कोविड आ गया, और ये सारे आमिर से मुझे गालियाँ दे रहे कि यार देख तूने छोड़ा और हम सब की दुकानें बंद हो गई, जरूर मेरी वजह से। तो खैर बहुत मजाक था, पर तो जब अब हमें पता था कि यार अच्छा मैंने सेशंस छोड़ दिए, कुछ और नहीं करना, बस अपने गाने बनाने। बैंड को भी बता दिया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू गाइस। एंड यू आर इन लाहौर राइट नाउ? दिस इज इन लाहौर, ओके। शिफ्ट सब कुछ हो गया, और बिकॉज बैंड में भी बिलावल यूज्ड टू प्ले सेशंस, आई थिंक उस टाइम बिलावल ही बजाता था, मैं भी इतना नहीं बजाता था, बिलावल वाज मेनली प्लेइंग सेशंस। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने, ये मेरा डिसीजन है, आई एम नॉट, यू नो, ऑफ कोर्स योर चॉइस, बट मुझे लगता है कि सेशन से इट्स अफेक्टिंग द वर्क दैट वी आर डूइंग। तो फिर हमने एल्बम का डिसाइड किया कि यार एल्बम बनाते हैं। एंड यू वर गोना ऑलवेज कॉल इट एलाने जंग? नहीं, व्हाट यू गोना कॉल इट? कुछ नहीं पता था। ओके, बस हमने गाने बनाने शुरू किए। ओके, और डेमोज भेजते हैं। जैन शेड अ डेमो जो कि इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी एलाने जंग, वो रिफ थी एक, और हम करते थे कि अच्छा डेमो बन गया, ठीक है जैम करते हैं। कोविड जब थोड़ा इजी हुआ तो हमने जैम करना शुरू की। 2-3 गाने मैंने घर पे बैठ के बना लिए। वन ऑफ देम वाज लाइक भूले, बेखुदी, ये 2 गाने ऐसे थे। बेखुदी घर पे बनाए आपके? हाँ, जो रिफ शुरू का पार्ट है। मैं बेसिकली हमारा प्रोसेस ये होता है कि मैं कोरस तक नॉर्मली गाने बनाता हूँ, मतलब उस पॉइंट तक, फिर वी जैम ऑन इट। तो उसमें फिर चीज़ें रिफाइन होती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें बेसिक छोड़ रहा होता हूँ, राइट, लाइक तो ड्रम बीट, एक टेम्पलेट प्रॉक्सी ड्रम बीट लगा दी। You're making a foundation? Yeah, on which you will then build a house. Yeah. So वो मैं कर रहा होता था। कोविड था, कुछ करने को भी नहीं था, गाने बन रहे हैं, बस बना रहे हैं। तो बेखुदी, भूले, ये पूरे गाने इस तरह। भूले तो मैंने लिखा, और बेखुदी भी मेरे ख्याल में, हाँ, मैंने कोविड के टाइम पे एक ही गो में सारा किया था, और फिर हमने बनाया था। तो एलाने जंग जैन का डेमो था, उस पर फिर काम किया।
उस गाने का नाम एलाने जंग बन गया बिकॉज होता क्या था कि द वे वी वर्क इज़ वेरी मेलोडी ड्रिवन. Okay. तो हम करते क्या, मेलोडीज बन जाती हैं बिफोर द वर्ड्स कम इन. Okay. तो जब जैम हमने की एलाने जंग पे भी तो वो बस जिब्रिश था. सही है. Okay. मैं अजीब टेढ़े मेढ़े इंग्लिश में भी वर्ड्स गा रहा हूँ, इस तरह मैं मेलोडी बना लेता था जब भी जैम करते थे. कुछ भी गा के वो रिकॉर्ड कर लेते थे. फिर मैं उसको बैठ के सुनता था, अच्छा ये मेलोडी है, ठीक है, इस पे ये बात हो. गाने से भी एक सेंस समझ आती थी कि अच्छा ये बात हो रही है इस गाने से. That's surprisingly similar to how rappers do it, you know. पहले उनकी बीट होती है, आपकी मेलोडी बोल रहे हो आप उसको, पहले उनकी बीट होती है and then they write on it, ना? Yeah. A lot of rappers do that. That's so interesting, no? There's that similarity. I don't, it's all music, man. It's brilliant. Whatever works. Yeah, I mean, dude. So there's no right or wrong. तो इस तरह में हम कंफर्टेबल है करने के लिए. तो उसमें मुझे याद है कि जब वो मेलोडी ऐसी थी कि उस पे एलाने जंग मेरे दिमाग में आता था बार बार. इस तरह करके वो मेलोडी थी, तो वो उससे दिमाग में आती बात थी कि यार ये वर्ड हो सकता है इसमें. एलाने जंग on who? The industry. अब छोड़ूंगा नहीं. दो उसके कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आप यू कैन गो ईदर वे विद द सॉन्ग. Okay. One is obviously a war with what's happening, and दूसरा था कि आपके अपने लिए एक जंग है. For yourself. yourself. For yourself. So lyrics में भी there are like two meanings if you read them ना, तो वो इसी तरह का एक open ended एक context है उसके अंदर जिसमें you can relate anyway. You think, I mean, so obviously now at this point it's established that all of you are brilliant musicians. All of you can sing, you can play, you know, you can play with the best of them. And you sound great now because, you know, you also know a thing or two about sound production, right? And you have the green light from people like Zulfi. So, you know, now you can tell yourself, yeah, theek hai. But do you think one of the other reasons of the kind of almost cult following that Karakoram has, where people know the words, man, they know all of it, is because of what you're singing about? Like, because content is important, right? Yeah. So you're also talking about things that are pertinent. ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना कोई भी कुछ भी बात कर दी and people are like, oh, it's just good music. It's good music with a meaning. Do you ever think about that? Or you're just like, that's the sort of person you are. You're like, it should have meaning. It should have good meaning. हाँ, I think कोई बात करनी चाहिए. हर गाने का कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है और कुछ भी हो सकता है. एंड जितने लोगों से वो लिंक करे, रिलेट करे, उतना अच्छा है. उतना अच्छा है. और मेन फोकस हमारा होता है कि अच्छे गाने हो, यू नो, ऐसे गाने हो जो कि लोगों को कुछ किसी तरह हिट करें. किसी तरह भी. They should affect you. अफेक्ट करें बस. तो ये प्लान होता है फ्रॉम डे वन व्हेनेवर वी. और अब तो ऑटो है कि हमें पता होता है कि अच्छा ये गाना बन रहा है तो ये इसलिए बन रहा है और इसका मकसद ये होगा. सो वो चीज़ शुरू से शुक्र है बिकॉज हम लोग साथ इतने टाइम से बजा रहे होते थे कि हमें पता होता था कि अच्छा हम ये करेंगे. सही. तो वो एक प्रोसेस था. एंड एलाने जंग का रिस्पॉन्स कैसा था? I liked it, but I mean, I'm just one person. हमारे लिए तो ऑब्वियसली वेरी ओवरवेलमिंग. बहुत अच्छा था. एल्बम रिलीज़ का क्या एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा इस तरह होता है. साथ एक वीडियो भी की तो बहुत अच्छा था. और ये रास्ता भी तो की थी उससे पहले. हाँ, तूफान के पार रास्ता की थी. That's like उससे my भी favorite. हाँ. Rasta. I've not heard that one. Oh. He gets aggressive with me if I say that ever. ये होता है. रास्ता It's one of the mellower songs. रास्ता is amazing. इनको अच्छा लग रहा है मेलो होगा ना. नहीं मेलो नहीं है, ऐसे ही कह रहा है ये मेलो है. आप सुनो, उसमें प्रॉपर है, प्रॉपर मतलब सोलो शोलो ये वो हैवी है बीच में. बट इट्स जस्ट कि मेरी एसोसिएशन उस गाने से हो गई. कुछ सिचुएशन में मैंने वो गाना सुना. वो होता है ना आपको एक लाइफ की कुछ साइकिल्स चल रहे होते हैं, बैंक में काम कर रहे थे, लाइफ के साइकिल्स कुछ ऐसे चल रहे होते हैं, आप एक ही गाना सुन रहे होते हो, फिर आपकी उस गाने से एसोसिएशन हो जाती है. हाँ, तो मैं जब भी वो गाना सुनता हूँ ना, मैं एक अपने एक दौर में चला जाता हूँ. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. It's like that with me and बेखुदी. वैसे every time I listen to बेखुदी, I remember. So you know, you flip tires, right? So जब 350 किलो के टायर में आप हाथ डालते हो ना, 350 किलो के टायर में, तो ऐसे लगता है कि the world is conspiring to push you down because वो चीज़ नहीं हिलती है, right? You just get stuck there and फिर आप बेखुदी ऑन करते हो, right? And then you fucking you realize कि this is not up to you. ये कहीं और से आएगा. So Flip it's it like a बेखुदी. burger patty. Yeah, it's like
this is not me, man. This is otherworldly energy. बेखुदी. बट बेखुदी का सोलो यार, ओह वाओ, क्या बजाया. और जब लाइव सुना था हमने, फट गई थी यार. मैंने लाइव पहली दफा एक ही बार सुना था. वही ना, वहाँ डिस्ट्रिक्ट पे ना. डिस्ट्रिक्ट नहीं वाह, डिस्ट्रिक्ट पे थोड़ी सुना था. मैं नहीं आया था. ओके, सो डिस्ट्रिक्ट 19 वाले कॉन्सर्ट पे, बाय द टाइम आई गेट देयर, Kashmir was supposed to play after you, and Saif Baz just standing there going, bro, Shahi Katak cheeta hai. Shahri Katak cheeta hai. And I'm just like, bro, Shahri Katak kaun hai? And uspe yahi disappointment. You don't even know who Shahri Katak is. I'm like, bro, I don't know most people, man. Like, it's not like he's like, bro, unne jo hai na tabai kar di. I'm like, okay. Zain Pirzada was sitting there. He had been on the podcast by this time. So I go to him, I'm like, how? He's like, हाँ bro, okay ho gaya. You know Zain P. That's just, he's like, okay ho gaya. And Saif Baz just like, bro, everything's over. Well, I listened to Kashmir and then I left before you guys could come on again. I don't know why it just happened like that. Yeah. And then the first time I listened to you was Arts Council. Right? अभी बिल्कुल अभी जो वीडियो भी बनाई थी मैंने. स्टेज बर्थडे का स्टेज था. जी बिल्कुल, बर्थडे का स्टेज था. बैलून शलून भी लगे हुए थे रंग बिरंगी, और आगे से ये चीखें मार रहा है. मतलब क्या जुल्म है. हाँ. And you know, you were doing the most, man. I appreciate so much. You got on your knees. I'm like, fuck yeah, man. This is great. And that's the first time I heard. And उस पे बेखुदी, अलविदा आपको पता है, I don't fuck with because men don't cry, right? So मैं तो नहीं सुनता bro. मैं बोलता मैं जा रहा हूँ. मैं ये नहीं सुन रहा bro. मैं नहीं सुनूंगा. But what was I gonna say? But so the response was overwhelming. Yeah. Right. Brilliant. And then what happens? So now you ek tarike se, now after this is the first time I suppose you're proving to yourself that this whole journey, you know, this was leading up to this, I'm sure. You know, not to you playing sessions for other people, not to you even proving that you're a good guitarist or Bilaval's a good drummer, or any of those things. It's leading up to the fact that you guys can make your own music affect people in this visceral way where people are screaming and they're crying and all those things. Must have been validation. बिल्कुल. And obviously was something कि यार, you know, boosted me more to, you know, think it that way कि यार direction ठीक है, right? और decision जो लिया वो सही था. Shit, dude. You know, 10 years for you to just figure that out. Yeah. Oh man, dude. Okay. हाँ. So, but भाई देर आए दुरुस्त आए जो Alhamdulillah, bro. I mean, मुझे बड़ा खुशी होती है when, you know, we read comments, when we get messages from people, और you know, knowing के लोग इतना seriously follow करते हैं, right? And और हमारे लिए numbers शुरू से नहीं थे. You know, हम लोग इस तरह सोचते ही नहीं थे कि यार views, numbers, fans कितने हैं. मेरा ये कि बस फ़ैन ऐसा हो जो कि आपके गाने गाए और आपके कॉन्सर्ट पे आए, आपके गाना शेयर करे ना करे डजेंट मैटर, बस आपका गाना सुने, राइट? नेचुरल वे तो यही है ना. पहले अब ये हो गया कि व्यूज़ है सारा कुछ, जो कि ठीक है, वो भी है सही, दैट्स अ गेम. बट हमारा फोकस वहाँ नहीं था कभी भी. हमारा था कि बस गाने ऐसे से कनेक्ट करें लोग. We need to affect you in some way. बस That's it. वो हो रहा था. Alhamdulillah. Elane Jang, it was happening because Elane Jang had this, you know, range of songs. अलग अलग किस्म के गाने थे जो कि हर किसी के लिए थे, थोड़े थोड़े करके, you know, कुछ हैवी गाने लाइक बेखुदी फॉर यू, रास्ता, सो हर किसी के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ था. उससे एक ऑडियंस भी ब्रॉडर हुई आफ्टर दैट एल्बम. सो या डायरेक्शन समझ आ गई कि यार सही जा रहे हैं. एंड नाउ जस्ट डू मोर ऑफ दिस. बस यही करना है. और कॉन्सर्ट्स करना शुरू किए. फिर डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सर्ट हुआ एलाने जंग के फॉरन, आई थिंक रिलीज के एक हफ्ते के बाद. And that पहला कॉन्सर्ट था. Okay, so then that was super important. It was also one of the first concert back, you know. Kashmir had not played, you had not played in so long, and there was टकाटक था वहाँ पे. नहीं, टकाटक नहीं था. वो एक और था कोई, वो नियॉन था. तो जो है वो पता नहीं कौन है, लेकिन था नहीं. ऐसे नहीं बोलते यार. पता है आपको? मुझे नहीं पता है. मुझे पता है. आप लोगों को पता होगा. देखो, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, तुम परेशान ना हो अगर मैं किसी के लिए कुछ भी सुन लो ना उनके गाने एक दो जाके ना. नहीं छोड़ ये था क्यों. बाय द वे जब एलाने जंग आई, जब मैंने पूरी एल्बम सुनी, एंड बहुत सारे गाने मुझे उसमें अच्छे लगे. एक्चुअली कोई भी गाना बुरा नहीं लगा. अलविदा वाज अगेन सुना, मैंने कहा यार बहुत ही, क्योंकि मेरा कजिन जो है, दोनों कजिन देबाद एंड उजैर, दे आर फकिंग साइकोटिक
freaks, fans of the highest order. कराकोरम या of मेटल? Karakoram. Oh, Karakoram. मतलब पागल है ना. तो वो मुझे जैसे इसकी एल्बम आई, मुझे ऑडियो आ गया, अद्दा उज़ैर मेरा कजिन, अद्दा पागल हो गया हूँ मैं मर जाऊंगा. अद्दा ऐसे गाने निकाल दिए, पागल कर दिया है मुझे, पागल कर दिया है. मैंने कहा अबे भाई क्या, मैं अभी सुनता हूँ, मैंने पूरी एल्बम एक गो में सुनी. Good. That's a way to do it. हाँ, ऑफ कोर्स मैंने सुनी, मैंने कहा यार बहुत नेक्स्ट लेवल यार, माशाल्लाह, अमेजिंग. उसके बाद जब मैंने सुना डिस्ट्रिक्ट 19 का आ रहा है, मैं इसीलिए बोलना ज़रूरी है, तो बिकॉज म्यूज़िक मेरा अपना भी पैशन है बहुत ज़्यादा, बजाता नहीं हूँ, बचपन से ही है. तो मैंने शेरी को फ़ोन किया, मैंने कहा शेरी बात सुन यार. अच्छा, मुझे ये बहुत शौक था कि मैं कोई लाइव कॉन्सर्ट को एक पूरा कवर करूँ, बिकॉज अपनी भी कैपेसिटी देखनी होती है, मेरा बस पर्सनल शौक था. मैंने शेरी को फ़ोन किया, मैंने कहा शेरी जानी ये सीन है और तुम आ रहे हो डिस्ट्रिक्ट 19, मुझे तुम्हारा पूरा कॉन्सर्ट कवर करना है. तो ही वाज वेरी स्वीट. ही सेड जाहिर स्वीट नहीं होगा, क्या कहता है, नहीं कर सकता तू. बट कुछ लोग आपके रीसेंट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, नहीं मैं नहीं बात करूंगा. काइंड इनफ. ही सेड नहीं यार आओ भाई, करो ज़बरदस्त है. तो वो कॉन्सर्ट मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि जब मैंने किया, पूरा कवर किया, आई वॉज वेरी लकी इन द सेंस कि ऐसा कॉन्सर्ट जिस तरह का म्यूजिक बजा और जो एनर्जी थी, दैट वाज अमेजिंग. It really was अमेजिंग. फिर जब इसने अलविदा गाया तो इसकी खुद फट गई. रोना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट चुप हो गया कि इसको, क्योंकि पूरी आवाम आपके साथ एक स्लो देखो ऐलाने जंग है, चीख के आप गा रहे हो, क्राउड की भी आवाज़ उस तरह से आपको नहीं आती है. अब अलविदा में अकेला गिटार पकड़ के बजा रहा है and everyone singing with him. It was amazing. I can't. I'm sorry. It was amazing. It was even. I would have left. I would have fucking. I'm like मैं बाथरूम जा रहा हूँ. आकर कान बंद. हाँ bro, मैं नहीं. तो while I was recording also, I was like, fuck man, this is. लेकिन आप भी रोते, आप तो मर्द हो, आप तो नहीं रोते. नहीं, मैं तो रच के रोता हूँ जब रोना होता है. तो कुछ नहीं होता. हाँ, नहीं, मैं तो यार बहुत रोता हूँ, बट माशाल्लाह. खैर, कंटिन्यू आगे. Yeah. Okay. So again, very prominent for everyone because him also, he's a content creator at this stage, ना? इस वक्त नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल content creator pure. And so we're all coming out of COVID, right? First concert after Elane Jung, also first concert in like years, right? और वो भी कराची में. And a response like the way it was, and I suppose mission accomplished because you were affecting people 100%, affecting yourself in the process. That was the most emotional portion of the concert because of the fact कि हमारी एल्बम को आए हुए I think हफ्ता हुआ था, and when we were playing the songs सब गा रहे थे. तो मेरे लिए बहुत मतलब अजीब सा मोमेंट था, realizing the fact कि अच्छा चलो गाने आते हैं, 1-2 गाने आते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं, शेयर करते हैं, कॉन्सर्ट हुआ, गा दिया. बट जब पूरी एल्बम आप रिलीज़ करते हो और उसके एक गाना बंदा गा रहा होता है ना, तो वो फिर आपके लिए एक अलग एक जोर से लगता है आके. तो वो कॉन्सर्ट में वो सिचुएशन हो गई थी जिसमें अलविदा ऑब्वियसली वन ऑफ द सॉन्ग्स, जिसमें मैं वैसे ही इट्स हार्ड फॉर मी टू डू इट लाइव. Where did that song come from? यार नहीं, बड़ा सिंपल जवाब है. During COVID, during the time, I unlocked this idea of thinking something जो कि फ्यूचर में हो सकती है. अल्लाह रहम करे. ठीक है, ऐसी रैंडमली, भले नहीं हुई, बट अपने आप को उस पोजीशन पे रख के लिखना, वो एक चीज़ थी जिस पे I started working on. That's super dangerous, हाँ. For you. So yeah. So Alvida came from that space, or I mean, I've been with my girlfriend for like 10 साल से. Alhamdulillah. Right? And I'm engaged, सब कुछ it's perfect. अल्लाह जुड़ा रखे, आबाद रखे इंशाल्लाह. It's going मतलब ज़बरदस्त, right? कुछ नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं, और लड़ाई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ज़बरदस्त. So वो भी मुझसे पूछते हैं कि क्या हो गया, कहाँ से आया, ये कब हुआ. तो बंदा सोचता है कि ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ है, झूठ बोल रहे हैं, झूठा. So उस चीज़ तो वो तरीके से जब हुआ तो आई रियलाइज कि यार ये बड़ा, आई डोंट नो, इससे आप इमोशनली कुछ होता है आपको.
when you do songs like these. Sure. Because आपने एक चीज़ पिक्चराइज की हुई है, उस पर आप लिख रहे हो, राइट? जब आप उसको गाते हो, वो पिक्चर आपके दिमाग में वापस आती है, and it fucks you up. Of course it does. Yeah. So अलविदा के साथ it happens all the time. मैं जब बजाता हूँ, it destroys me, man. Yeah. I mean, Have you ever been able to get through it in one go? एक दो दफ़ा, Yeah. But concerts पे बहुत मुश्किल होता है. Even in arts concert, I couldn't sing the verse. हाँ. I couldn't do the last chorus. हाँ. तभी मैं रहा वहाँ पे because you couldn't do it. सही है. Good है. सही है. So yeah, कुछ गाने होते हैं ऐसे जो कि मुश्किल होते हैं. Yeah. नहीं माशाल्लाह he created something out of nothing basically. Yeah. कि एक सिचुएशन राइज ही नहीं हुई है, वो तूने अपने दिमाग में पूरी बनाई है, Yeah. फिर तूने उसको लिखा है गुजरा, फील किया और फिर लिख दिया. जी, और अब तू हर बार फील करता है जब गाता है. and people resonate with it, no? Because there's obviously people going through that shit, man. Yeah, You know, there's people that are, and the thing is also, I think it must be said here, हमारे मुआशरे में breakups को generally या this breakup नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर रहे हो, इसको trivialize भी किया जाता है कि अबे क्या हो गया, मर्द बन, या अबे कोई बात नहीं, और औरत को बोलते हैं और मर्द मिल जाएंगे. Dude, उस वक्त it's one of the worst things that you could ever go through. बिल्कुल. You know, and it's really heavy, and you know, उस वक्त nothing makes sense except maybe a song, you know, except maybe someone just telling you कि हाँ ठीक है, you know, it's fine, putting words to it. Yeah. I think that's super powerful. Okay, so again, beautiful. Now you're like there. Now Karakoram's there, right? How long till Coke Studio? I think ऐलान जंग के बाद 2 साल. हाँ. 2 साल you were playing concerts and stuff? हाँ, कोविड आ जा रहा था, हम कॉन्सर्ट करते थे, हाँ. फिर बंद हो जाता था, you know, नया वेरिएंट आ जाता था, यही हो रहा था, जी. बैक एंड फोर्थ. तो ऑब्वियसली मैं जुल्फा के साथ काम कर रहा था इस पूरे टाइम पीरियड में, प्रोजेक्ट्स आते थे, सब कुछ. तो जब कोक ऑफर हुआ जुल्फा को, तो Sorry, I have to show him. वही है. I was like, Coke offer was looking like this. Zulfi bhai, यही तो है. Surprise. So yeah, जब Coke हुआ तो obviously I was part of the team, सारा कुछ, and एक think tank बना. Okay. For Coke, जिसमें 5-6 लोग थे, and idea basically जुल्फा ने बताया कि कोक के लिए था सारा कुछ. एंड ही वाज लाइक, यार इस सीज़न का मकसद जो है ना, इट हैज़ टू बी अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान करंटली इन द म्यूजिक सीन. जो हो रहा है अभी वही दिखाना है. इट शुडंट बी कि अच्छा पाकिस्तान से तो कल्चरल हो या ये हो, बाउंड नहीं करना अपने आप को, कोई भी आ सकता है. जब ये हुआ तो लिस्ट बनना शुरू हुई आर्टिस्ट की. सब ने नाम दिए, सब बहुत बड़ी लिस्ट, सब एवरीवन, और बहुत सारे तो नो ब्रेनर्स थे ना. एक लिस्ट बन गई, एवा बी, सारे ऑब्वियसली आप द परवीन, कम ऑन नाउ, पूरी एक लिस्ट बन गई. फिर उस प्रोसेस में आइडियाज़ डिस्कस हुए. अच्छा ठीक, बिकॉज जुल्फा का तरीका है काम करने का कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आर्टिस्ट को बस मिला के गाना गवा दो. देयर हैज़ टू बी अ नैरेटिव, देयर हैज़ टू बी अ स्टोरी जिसको वो दोनों रिप्रेजेंट करें, या यू नो आइडिया होना चाहिए कोई. ही इज अ मैड जीनियस टाइप सिचुएशन ना विद जुल्फी भाई. आई थिंक इट इज, ऐसा लग रहा है मुझे. आई थिंक विजन जो वो रखते हैं ना, इट्स वेरी मतलब फार. उस वक्त समझ भी नहीं आ रही होती, समझ नहीं आ रही थी, बट फिर आई मीन इवन द फैक्ट के व्हेन पसूड़ी, हैव यू हर्ड पसूड़ी? या पसूड़ी जब बन रहा था, मुझे याद जुल्फा ने कहा था कि यार ये गाना हैज़ द पोटेंशियल टू गो ग्लोबल, एंड इट हैपेंड. इट डिड हैपन. इट हैपेंड. स्पॉटिफाई ग्लोबल में था वो गाना. या ऑन नंबर 3 इन द वर्ल्ड. सो sometimes it amazes me. It amazes me कि यार ये is he frustrating to, क्योंकि geniuses often are, is he frustrating to work with? Zulfi bhai, is he like a hard taskmaster? Is he difficult? Yeah, I think modes होते हैं हर बंदे के, right? And I've been with him for so long कि you know I've learned my way कि यार अच्छा इस कैसे कहूँ, मतलब इस मोड में मे बी डोंट
हाँ मतलब आपको you have to understand where the other person is coming from, right? Okay. So with Zulfa it has to be that way. Okay. कि कुछ भी हो रहा है I always think अच्छा ये उस पोजीशन में है इस वजह से ये बात हो रही है, you know? Okay. So हर बंदे का ब्रेकिंग पॉइंट भी आता है, सब कुछ होता है, और स्पेशली विद प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोक और सब कुछ, इसमें फिर तो आप प्रेशर इज लाइक enormous. अभी रिसेंटली भा मो काज़मी जो बुदो, so is it Mo Kazmi or who was it? So there's a person, I think, forgetting his name, but he super prominent event organizer. Some event was not going well, and so event, I'm just saying that because producers of that level, एक तरीके से उनका it's their job to manage everything. ठीक है ना, और सब आर्टिस्ट आपकी तरह नहीं होते हैं. कुछ आर्टिस्ट को एक्वाफिना की जगह नेस्ले पानी की बोतल मिल गई तो उस पर भी मसले होते हैं. All of that then becomes Zulfi Bhai's problem, right? Yeah. So there was a event organizer, super young, super prominent. He's 38 years old. कुछ हुआ किसी event पे, and he got so angry, got so frustrated or whatever. He suffered a brain hemorrhage. Oh shit. He's in the hospital. 38 years old, ba? Mo Azmi or Mo Kazmi? Mo Kazmi, I think. What does he do? He's an event organizer, I think. I have no idea. But I don't know this, but because I only do not know this because the rest, everything around him just did not register. All I heard was 38 brain hemorrhage. I'm like, dude, no, come on. That's what? And he's in the hospital right now. It's just, and it's so dire that doctors बोल रहे हैं कि, you know. Shit, yeah. Yeah, that's, you know, Allah रहम करे, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा दे इंशाल्लाह. I only bring that up to be like कि जो producer होता है, जो main producer होता है, you don't understand until you're him or her. उसके अलावा आप नहीं समझ सकते हो, you know. So yeah. तूने ड्रामे तो देखे होंगे बहुत सारे कोक स्टूडियो में, इस तरह के छोटे मोटे. हाँ बहुत होते हैं बिल्कुल. एंड आई थिंक वो एक चीज़ जो व्हाट आई हैव लर्नड कि आप अगर माहौल अच्छा बना देते हैं ना आर्टिस्ट के लिए, वो फिर खुद इजी हो जाता है. ओके. स्पेशली इन केसेस लाइक यू नो दीज आर्टिस्ट जो कि जिनके होती हैं सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स यार, और बेसिक होती है, ऐसा भी नहीं कि भाई. लेकिन शायद भाई इट इज़ दिस ना कि ये इंडस्ट्री इतनी कट थ्रोट है, मोस्ट ऑफ देम फील लाइक दे हैव टू कम ऑन स्ट्रॉन्ग. ऊपर से आना एक तरीके से लाजमी है उनके लिए. ये भी है ना, बिल्कुल ऐसा भी कुछ होता होगा. बिल्कुल. सो बहरहाल लिस्ट बन रही है, राइट? दैट्स व्हेयर वी आर. लिस्ट बन रही है. अब क्या हो रहा है उसके बाद थिंक टैंक में? हाँ, लिस्ट बन गई. अब आइडियाज़ फिगर आउट करने, अच्छा किसको पेयर कर सकते हैं, और एंड दिस वाज अ गिवन के कोलैबोरेशंस करनी है. सही है. What a good idea that was. So yeah. Yes. हाँ, कोलैबोरेशंस भी इस तरह के, ऐसे नहीं कि बस दो को पेयर कर दिया, कोई नैरेटिव होना चाहिए. तो आई रिमेंबर द फर्स्ट नैरेटिव दैट यू नो केम आउट वाज द फर्स्ट सॉन्ग आपदा जी एंड नसीब लाल. या सो ये आइडिया था, एंड आई रिमेंबर थिंक टैंक में बात हुई, एंड गूज़बम्प्स में लाइक यार ये सीन है, पहला ये गाना तो है, ये तो लॉक करे आइडिया. यू नो इस तरह करके आइडियाज़ बनते गए, पेयर करते गए आर्टिस्ट, गानों पे काम भी शुरू हो गया. फिर जुल्फ़ा ने मुझे कॉल की कि यार कराकरम का गाना होना है, एंड यू हैव टू, मतलब ऐसे नहीं होगा, तुम्हें मुझे मतलब ऐसा गाना बनाओ जो कि यू नो something that you've never done before. And I was like, okay, कैसे होगा ये? ठीक है. What was your reaction though? Obviously I was stoked के यार. Coke Studio, dude. Coke Studio, right? And और मैं थिंक टैंक में था उस वक्त, कराकरम का नाम नहीं आया था पूरी लिस्ट. Did you feel bad कि नहीं आया था? नहीं. You were there in a professional capacity, just doing your job. हाँ, I was like, okay, good. बिल्कुल न्यूट्रल के, हाँ ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा. खुद तो मैं कभी नहीं लूँगा नाम अपने बैंड में, नेवर. तो इस तरह होता क्या? अगर हम होते हम ले लेते हैं. पहला नाम ही टॉप ऑफ द लिस्ट. कराकरम का सुना है, और टिक मार्क. अलविदा सुना है कभी? खुद नहीं गा सकता. सोचो कितना. काराकोरम के लिए तो हम कर लेते. हाँ बिल्कुल. सो हाँ, तो ये जब हुआ तो आई रिमेंबर कि जब लिस्ट बन रही थी तो तकरीबन 14-13 आइडियाज़ हमें बनाने थे. 10 बन गए थे उस टाइम तक. आखिरी रह गए थे, तो
मेरे ख्याल में मीटिंग्स इसी तरह होती रहती थी थिंक टैंक की ना. जब हुई तो जुल्फ़े केम अप के यार लिस्ट देख रहे थे यार, इसमें सारे जॉनर्स कवर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रॉक इज़ इन देयर, राइट, होना चाहिए. तो फिर नाम आया तो उसमें कराक्रम का नाम आ गया. और भी बैंड्स 2-3 बैंड्स आए इस तरह, नाम एक लिस्ट बन गई बैंड्स की. फिर जुल्फ़ा ने कहा यार देखो नाम तुम्हारे लिस्ट में आ गया है तो तुम अब गाना फिगर आउट करो, खुद ही क्या करना. figure it out. हाँ, And don't let me down. He had a lot on his plate, right? Yeah. वो ऐसा नहीं हो सकता था कि वो मेरे साथ बैठे हैं. तो उन्होंने कहा तुम्हें खुद करना होगा. I was like ठीक है. And I was at it. मैंने पहले ये भी था कि we were paid with someone else. Are you at liberty to say who? I guess not. Okay, सही है. मेरे ख्याल में नहीं. After the podcast. हाँ, वो थे नहीं सीजन में तो हाँ, ये दिल दुखेगा उनका अगर पता चलेगा. तो Dude, next time. इनफैक्ट दो पेयरिंग्स थी जो कि दोनों नहीं आए. दोनों नहीं Next time inshallah. If you know, Allah रहम करेगा. It's alright. बट वो भी रैप बेस्ड ही थे. वन ऑफ देम वाज. सो जब जो पहला आइडिया था वो नहीं था, तो वो एक गाना इस तरह का था कि जुल्फ़ा वाज लाइक यार इट कैंट बी फुल ऑन रॉक, इट हैज़ टू बी समथिंग जो कि तुम लोग अपने शेल से निकलो बाहर. Okay. ऐलान जंग ये सब हो गया, यू हैव डन इट, अब आगे. लिंकिन पार्क मोड से बाहर आओ. हाँ, निकलो बाहर. या लिंकिन पार्क मोड के अंदर जाओ. लिंकिन पार्क में एम शिनोडा भी तो होता था. हाँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल The heavier side, yeah. ऑल्टरनेटिव रॉक से बाहर आओ. मतलब थोड़ा सा बाहर आओ या जो भी. हाँ, और सबके दिल छू जाओ. वो तो छू लिया. दिल के क्या क्या तार छुआ है छूने का तूने time फिर है. Bro, हमारे? अल्लाह रहम करे. एक मिनट रुक जाओ. एक मिनट. हाँ, सो अब वो टाइम आ गया कि मैं गाने पे काम कर रहा हूँ. पहला डेमो भेजा. Did you know it was called ये दुनिया शुरू से? नहीं. Okay. दूर दूर तक ये गाना बना भी नहीं था. Okay. पहला गाना जैम किया बैंड के साथ, बुलाया सबको, बैंड जैम किया. Did you know Tala Anjum and Faris were going to be on? नो, You didn't know that? नहीं, इस टाइम तक नहीं थे वो लोग. Okay. नाइस फिट. कुछ भी नहीं था इस टाइम तक. Exciting. इस टाइम तो ये था कि वो पहला आर्टिस्ट जो शॉर्टलिस्ट हुआ था वो है साथ. ठीक है, मैं नाम बता दूंगा आपको बाद में. तो गाना बना, जुल्फ़ा को भेजा, नहीं. And he has no time to explain why. It's हाँ, just like, नहीं, no. उन्होंने मुझे मैसेज किया वॉइस नोट ऑब्वियसली कि यार ये वही हो रहा है, Feel नहीं आ रही. तुम लोग वही कर रहे हो. इट्स नॉट समथिंग न्यू. Okay. ये ऐलान जंग के अंदर भी हो सकता था गाना, ये तुम लोग नहीं निकल रहे हो बाहर बॉक्स से. मैं कहा ठीक है. सेकंड ट्राई, वापस नया एक और बनाया, फिगर आउट किया, डेमो बना के भेजा. मैंने कहा हाँ ठीक है, सही है, पर करते रहो, इट्स नॉट देयर येट. Okay. ठीक है. फिर थर्ड टाइम जब मैंने बना के भेजा, वो भी इतना नहीं था कुछ जो वो सोच रहे थे. उन्होंने कहा यार एक आइडिया है, एक काम करते हैं, तुम स्टूडियो आओ और हम लिखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द तुम बनाओ कुछ. तो अदनान धूल ने बहुत सारे गाने लिखे हैं Okay. इस सीज़न. Okay. तो उन्होंने कहा मैं अदनान को ही बुलाता हूँ, उसके साथ मिलके कुछ करते हैं. मैं बिल्कुल ठीक है, उन्होंने लेट्स डू इट, बिल्कुल सही है. बैठे, गाना लिखा, कॉन्सेप्ट सोचा क्या था, बना. इस पॉइंट तक जुल्फ़ा वाज लाइक यार तुम लोग गाना बनाओ और लेट्स गेट समवन एल्स ऑन बोर्ड टू प्रोड्यूस एंड मेक अरेंजमेंट फॉर यू गाइस. Okay. ये भी हुआ. Okay. बना गाना, पूरा बन गया गाना. वो आर्टिस्ट भी, उसको भी जो थे उनको सुनाया, जी सही है, फिट है. फिर जिनको होना था जो नहीं जी हुए. जिनको होना था. फिर हुआ क्या कि अचानक जिनको होना था उनसे कोक की नहीं हो पाई. Oh shit, dude. Yeah. Oh, fuck. All right. Next time, dude. Inshallah. That's not even anyone's fault. No, so that's not the artist's fault. That's not Zulfi Bhai's fault. It's Was नहीं, meant to be. उनकी कोक की नहीं हो पाई. You mean मतलब आई मीन आर्टिस्ट के जब आप बहुत सारे रीजंस होते हैं ना टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली एक डील होगी, सारा कुछ होगा. ओके उस तो वो- हिसाब से वो हाँ, मतलब और पर्सनल भी टर्म्स नहीं हो That's पाए. horrible, huh? हाँ, और भी था कि इस तरह मतलब वो नहीं हो पाया Okay. उनका. तो अब वो गाना अब हम सोच रहे हैं तो कोई और दिमाग में भी नहीं आ रहा. गाना स्क्रैप, ज़ीरो. All right. एंड फिर मैंने जुल्फ़ा को
मैसेज किया, मैंने कहा यार जुल्फे हो ये गाना हो तो रहा था लेकिन पता नहीं मतलब मुझे ऐसे नहीं बोला कि फील नहीं, मैंने कहा कि इट्स नॉट रेजोनेटिंग विद द बैंड. मतलब सिंपल वर्ड्स में इस तरह हमारी कॉन्वर्सेशन होती रहती थी फ़ोन पे ना. तो आई वाज लाइक, मैंने कहा यार मुझे आप एक और शॉट दें प्रोड्यूस करने का, मतलब वापस बनाने का. फिर द सेकंड आर्टिस्ट केम इन. वो पूल में से जो लिस्ट थी उसमें से सेकंड आर्टिस्ट जुल्फे ने आइडिया दिया कि यार ये हो सकता है. कौन? कोई जिसका नाम नहीं ले सकते. उसका नाम नहीं ले सकते. यार आई एम नॉट श्योर मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, बट वैसे ले भी सकते हो. ले भी सकते हो. बीइंग रिस्पेक्टफुल यार ऐसी की तैसी. अरे पेपा को रुक जा. बीइंग रिस्पेक्टफुल ऐसे तो क्या इशू है? नहीं आई थिंक चलो, पता नहीं मेरे बैंड ना बच जाए ना. या सो या सेकंड आर्टिस्ट केम इन, रैपर. अब जब रैपर आया तो कॉन्सेप्ट ही चेंज. वो गाना नहीं यूज़ हो सकता, नया बनाना है. जुल्फा ने कुछ रेफरेंसेस भेजे कि यार इस तरह सोचो, ये गाने बनाना शुरू किया. एक बीट थोड़ी सी बनी बेसिक, और एक लूप था, एक स्ट्रिंग सेक्शन टाइप लूप था, विच एंडेड अप बीइंग द फर्स्ट इंट्रो ऑफ द सॉन्ग ये दुनिया. वो जो शुरू में आता है सेक्शन, वो पूरा स्ट्रिंग सेक्शन कॉर्ड अरेंजमेंट थी, और फिर बीट आती थी ना 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 ना, ये बीट थी. इस तरह का एक टेम्पलेट बना, जुल्फा को भेजा. जुल्फा ने कहा यार ये हो सकता है, इसको करो और एक्साइटिंग बनाओ इसको, यू नो. अभी ये सीधा सीधा जा रहा है, इसमें तुम पंगे लो, ब्रेक्स, ये चीज़ें करो, और चीज़ें ऐड, इंटरेस्टिंग बनाओ. बनाया करा एक पॉइंट बना. कॉरस की मेलोडी बनाई. कॉरस की मेलोडी वही थी जो कॉरस की है. मेलोडी बन गई वही. बेसिकली हम घूम फिर के वही अपने तरीके पे आ गए करने के. यार मेलोडी बनाई, स्ट्रक्चर बनाया और बन गया. हाँ. अच्छा, बैंड इस वक्त नहीं था लिंक इस पूरे उसमें प्रोसेस में. मैं बस कंप्यूटर बना रहा था, बिकॉज मैंने कहा यार ये करना है. और होता है ना कि बिकॉज आप जब बैंड जब साथ बजाते हैं तो वो क्योंकि इतने टाइम से साथ बजा रहे हैं, वो एक ही तरह अप्रोच एक ही तरह की होती रहती है. Right. तो जुल्फे में समझ आ गई थी कि अप्रोच फ़र्क लाज़मी नीडेड हेयर. तो वो जब बना तो मैंने कहा ये डन है, इसी को करना है. सेकंड आर्टिस्ट को भी भेजा. ही वाज लाइक यस, ज़बरदस्त करते हैं. वापस अदनान के साथ बैठे, सेशन लगाया. आई थिंक 10 मिनट के अंदर अदनान केम अप विद द आइडिया. हम बैठे हुए थे नीचे स्टूडियो में, जुल्फा के बेसमेंट में था. अदनान ने कहा यार एक सिगरेट ब्रेक मैंने लेना है. मैंने कहा चलो मैं आपको कंपनी दे देता हूँ. ऐसी मैं ऊपर गया, हम लोग ऊपर गए. ऊपर बैठे बस हम बैठे हुए गार्डन में उस तरह. और अदनान वाज लाइक यार ऐसे ही बैठा सोच रहा, लाइक यार हम सब कर रहे हैं यार, देख ये सब हो रहा है, और लेकिन दुनिया नहीं रुक रही. शिट. एंड कहता है यार ये हो सकता है. और फिर उसने ना गाना भी थोड़ा, मेलोडी क्योंकि बनी हुई थी तो वो उस गाने को वो हम भी कर रहा था. तो उसने ये दुनिया इस तरह करके ही, आई वाज लाइक शिट. मैंने कहा एक मिनट रुको यार, मैं नीचे से गिटार लेके आ रहा हूँ, बजाते हैं इसको. मैं भाग के गया नीचे स्टूडियो में, दरवाज़ा खोला, जुल्फा ने कंप्यूटर बैठे थे. मैंने गिटार उठाया, जुल्फा ने क्या हो गया, मैंने कहा बस आ रहा हूँ. गिटार उठाया, वापस भागा ऊपर, कॉर्ड बजाई. जो वर्ड्स उस टाइम तक उसने वर्ड फर्स्ट लाइन लिख ली थी कि चेहरे बदलते जाएंगे, चलती जाएगी ये दुनिया, रुकती है कहाँ किसी के भी लिए. ये लिख लिया था उसने. मैं उस कॉर्ड पे बजाया ना, लाइक यही है, दिस इज़ इट. और बड़ा हार्ड हिटिंग. नीचे जाके हमने जुल्फा को सुनाया. जुल्फा ने कहा यार कहाँ से कैसे किया तुम लोगों ने इतनी जल्दी. एंड बस वो कॉरस बन गया. This is divine. This is beautiful. नहीं, मजाक Yeah, this is beautiful. ये इसी तरह होता है. बस हुआ ये. फिर अब हमें पता था कि कॉरस है, शुरू हुआ कॉरस से गाना, रैप आया, कॉरस वापस आया, सेकंड रैप आया, ब्रिज आया. ये हमने सोचा हुआ था. That's all you know though. You don't know who's coming now. You know the other artist is coming. अदर आर्टिस्ट कमिंग, बट हमें नहीं पता था क्या लिखेंगे, क्या होगा उस पे. रैप होगा, बट हमें नहीं पता था. But did you trust them to also carry the song? You were like, okay, he's good enough. Yeah, he was like,
बताऊंगा आपको नाम उसका, आपको हाँ. मज़ा आएगा. हाँ. बोहेमिया. पता नहीं, I don't know. चलिए उस तो खैर ये हुआ, गाना बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, ब्रिज भी बन गया. ब्रिज नहीं बना था, कोरस तक बन गया. जुल्फ़ै ने वो स्ट्रक्चर आर्टिस्ट को भेजा, फिट था सब कुछ. उस आर्टिस्ट के साथ भी प्रॉब्लम हो गया. ही वाज अ फॉरेन आर्टिस्ट. ओके. तो प्रॉब्लम ये हुआ कि ही वाज़न्ट विलिंग टू कम टू पाकिस्तान. वो चाह रहे थे वहीं पे रिकॉर्ड हो जाए. हाँ. इज दैट फेयर? उनकी अपनी टर्म्स थे. हाँ. ही वाज बिकॉज आई थिंक आइडिया उनको हालांकि बताया हुआ था कि विजुअल बहुत इस दफ़ा डिफरेंट है. तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे टू डू इट इन अ वे कि एक आर्टिस्ट यहाँ शूट हो रहा है, एक आर्टिस्ट वहाँ. बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था फॉर अस. इस पर भी बात हुई थी कि यार ये मतलब करें या ना करें. तो ये सबका डिसीजन था कि यार विजुअली ऑफ लग सकता है, बिकॉज बाकी सारे गाने लाइक grand. It would have been too much, I think, Sherry. It would have been too much to send a team there to record in there and all those things. हाँ, hassle. तो खैर didn't work out. आगे भी बात fair dues, yeah, whatever. अब हम फिर अटक गए. And till this point, there's no conversation about who. मतलब okay, ठीक है. अब हमें नहीं पता, कोरस बन गया है, गाना बन गया है, 2 रैपर चाहिए, राइट. रैपर भी नहीं चाहिए, मतलब हमें था कि यार ये गाना फिट है लेकिन ये रैप के बगैर नहीं हो सकेगा, बिकॉज वो स्ट्रक्चर इस तरह हुआ था. एंड वी वर श्योर अबाउट दैट कि यार नहीं हो सकता. अब जुल्फ़ै ने मुझे बताया कि यार ये सिचुएशन है, और एंड मैं उस पॉइंट पे था, मैंने कहा जुल्फ़ै छोड़ें, गाना ही नहीं करें, ड्रॉप करें. After the epiphany that just happened in the garden, dude. बिकॉज इतना कुछ, मतलब ये वो टाइम है जब पागलपन मचा हुआ था. This was like madness. Absolute pandemonium. बहुत कुछ हो रहा था. How many songs were being at the same time? बड़ा कुछ हो रहा था. It was like एक गाना बन रहा है, एक गाना जैम हो रहा है. तो डिवाइड कर लिया हमने अपना काम. जुल्फ़ै used to be leading the composing process with the producers जो साथ साथ होते थे. जब वो बन जाता था गाना, एक पॉइंट तक आ जाता था, स्ट्रक्चर वाइज वो मुझे भेजते थे, मैं उसके स्टेम्स फिगर आउट करता था. वी यूज़ टू फिगर आउट अच्छा कौन कौन म्यूजिशियंस हो सकते हैं, इसमें क्या क्या बज रहा है. आई यूज़ टू लीड द जैम प्रोसेस, सारा रिहर्सल. ये एक तरफ हो रहा है एक स्टूडियो में, दूसरे स्टूडियो में जुल्फ़ै एंड द अदर प्रोड्यूसर्स आर वर्किंग ऑन द सॉन्ग साइमल्टेनियसली. 3-4 गाने 5 गाने हो रहे हैं. साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए सारे गानों के, उसमें डेमोस चीज़ें शेयर हो रही हैं. मुझे भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि यार इसमें गिटार पार्ट सोचो, इसमें ये सोचो. सो madness. Oh man, dude. And okay. तबाही मची हुई है. Okay. I was like, यार जुल्फ़ै, पता है मुझे लगता है कि नहीं यार. तो खैर वायर एक वो हो गया कि यार एक चीज़ हो ही नहीं रही. फिर जुल्फ़ै ने कहा कि यार एक बंदा है, 2 I mean उस वक्त एक तलहा का फिर आया जिक्र. We need some magic. We need someone जो कि लिखे इस पे और तबाह कर दे, राइट. जुल्फ़ै ने कहा तलहा वाज लाइक यार मतलब, बिकॉज एक और मसला था. वो ये था कि हम डे 1 से जब आर्टिस्ट लिस्ट बना रहे थे सब कुछ, वी वर श्योर कि एक आर्टिस्ट एक गाना करेगा. Okay. बिकॉज 13 गाने थे, गाने कम थे, आर्टिस्ट बहुत सारे थे. तो ये रूल तो नहीं था, बस एक गिवन था कि यार कोशिश ये करेंगे कि कोलैबोरेशंस हो और रिपीट ना हो ज़्यादा आर्टिस्ट, ताकि सबको इक्वल एक गाना दो जो भी. तो उस टाइम तक हमने जुल्फ़ै ने कहा कि यार तलहा से बात करते हैं यार. और शूट चल रहे थे इस वक्त, बाय द वे, ठीक है. हाँ, हम शूट प्रोसेस में जा चुके थे. जैम्स ख़त्म हो गए थे, शूट प्रोसेस हो रहा है. आई थिंक दूसरा गाना था, तीसरा गाना था, शूट हो रहा है. और वो अलग साइकिल, एक सिचुएशन चल रही है, साथ ये चल रहा है. यंग सनस का ही था गाना, शूट हो रहा था. तो बल्कि नहीं, कोई और गाना शूट हो रहा था. यंग सनस बॉयज़ आए हुए थे सेट पे. तो ये लोग रूम में थे. तो जुल्फ़ै ने कहा यार तलहा को सुनाते हैं और देखते हैं क्या है उसको, व्हाट डज ही फील.
हम गए, दोनों गए, जुल्फ़े और हम लोग, ये लोग बैठे हुए थे, दोनों बॉयज़, तला और अंजुम, हाँ यूनुस, दोनों बॉयज़ बैठे हुए थे। तो जुल्फ़ा ने कहा कि यार ये गाना है, फ़ोन पे भेजा उसको, उन्होंने, तला ने हेडफोन लगाया, सुन रहा है, सुन रहा है, हो गया, पूरा सुना, कहता है शुक्र है इसने नहीं बोला अभी सुन रहा था, उसने कहा चेहरे बदलते रहे। फिर हम बोलते छोड़ो हटो इसको। डिज्नी की मूवी हो गई। फर्स्ट टाइम जस्ट लिसन टू इट, चेहरे बदलते रहे। अच्छा जब ये हुआ उसको हिट किया, उसने कहा ज़बरदस्त है, वुड लव टू डू इट एंड ऑन बोर्ड, लॉक है सर, मैं लिखता हूँ। जुल्फ़ा ने कहा इस पर कुछ लिख दो, फुल रूम, राइट वट एवर यू वांट, ये लाइन है बस कोरस की, ये गा रहा है, उसके ऊपर सोच क्या है। अच्छा इस पॉइंट तक क्योंकि था क्या कि स्ट्रक्चर में 2 वर्सेस थे बड़े बड़े, तो जुल्फ़ी भाई कॉल मी एंड ही वाज लाइक यार 2 वर्सेस रैप के एक बंदा अगर करेगा तो शायद स्ट्रक्चरली थोड़ा ड्रैग हो सकता है, मोनोटोनस हो जाए थोड़ा सा। हाँ। तो आई एग्रीड कि हाँ यार बिल्कुल हो सकता है। और हुआ क्या कि जब तलहा का जुल्फ़ा ने बताया तो कराकरम का एक ग्रुप बना हुआ था जुल्फ़ा के साथ, जिसमें ये कोक की बात हो रही थी सारी। तो बिलावल और बाकी लोग ने बोला कि यार फारिस मेरा फेवरेट रैपर है। बिलावल वाज लाइक यार फारिस भी बहुत अच्छा, अगर हम फारिस को भी ले आए इसमें तो क्या। जुल्फ़ा ने कहा यार दोनों, और हमने कहा शिट, ओ ये क्या हो रहा है भाई, पहले तो एक आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था गाने के लिए, अब 2 आ रहा है, राइट। और ये 2 फारिस को जुल्फ़ा ने भेजा, फारिस लव्ड इट, फारिस लाइक यार मैंने करना है, और उसने भी। अच्छा तलहा को हम भेजा है हमने, 3 दिन के बाद तलहा ने वर्स लिख दिया था। गुड। 3 दिन के बाद जुल्फ़ा का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे, और मैंने देखा वो पूरा वर्स लिखा हुआ था। मैं बोला ये क्या है, जुल्फ़ा ने कहा ये लिख दिया, काम हो गया कर bro। दिया लड़के ने, अब बस आगे बढ़ो। तू देख क्या लिखा है, इसने तबाही कर दिया। अब समझ आ गई थी कि ये हो रहा है। फिर फारिस ऑब्वियसली रोट हिज पार्ट, और फिर वो ऑब्वियसली गाना बन गया इस तरह। ये उसके बाद बस ये था। The effort that it took, the toll that it took on you, Zulfi bhai also, but the band, how was it then to see people here, India, elsewhere in the world respond to it with, because dekho, again I will say this, the content, the music is great, but also the content is supremely powerful, right? When you're telling people कि अगर आपका कोई भी नहीं, आपका खुदा होता है, अगर आप कोई भी आपके पास नहीं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, you know, it's again and again it's a message of hope, right? Even if it is a selfish and heartless world, there's still hope because you're not alone, right? And then obviously the blending of such unique sounds. Faris and Talha in themselves rapper bhale ho, but they're in themselves very, very, very different, right? And then Karakoram. And then Karakoram, right? And then Karakoram, and then, you know, the fucking you and all of that, right? So, but the toll that it took on you, on your cognitive capital, to the point where you were like, karte hi nahi hai, right? Then to see everyone respond the way they did, how is that? Amazing, man. I mean, जब पहला साउंड चेक हुआ ना, और बिकॉज फारिस के साथ वी डिडंट रिहर्स्ड At all? हाँ, How come? बस स्केड्यूल इश्यूज थे, शूट भी चल रहे थे, सब चीज़ें, तो जैम क्योंकि जब मैं जैम रूम इनके हाँ, गया उसमें तलहा था था। 2 दिन पहले, जब इनकी आपस की सारी जैम चल रही थी, तो फारिस नहीं था। Okay. 2 days before the actual recording. हाँ 2 दिन नहीं था, 2 दिन, या तो उसमें सिर्फ तला था। हाँ. तो मैंने वो पूरा प्रोसेस देखा जिसमें ये लोग गाना उस वक्त भी स्ट्रक्चर ही, और एक तरह से कुछ चेंजेस उस वक्त साइमल्टेनियस आ रही थी। इसने जब गाना गाया, इसने कुछ 10 बार इन्होंने गाना गाया होगा, जिसमें 4 बार अंजुम एंड में आया था, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड या किसी का वर्ल्ड कप का मैच था। हाँ, तो सबको ये भी था भाई वो मैच भी देखना है, तो अभी थोड़ा गुजरा ही,
तो जब गाना गा रहे थे लोग तो उसके बीच में कुछ पार्ट्स आए जो थोड़े से खाली लग रहे थे, तो इसने और उसने डिस्कस किया, उसने कहा कि भाई यहाँ मेरी कुछ जगह बन रही है, दैट इज वेयर द पार्ट कम्स, चेहरे बदलते रहे, वो पार्ट उधर आता है। उस जब शुरू में उसने गाया था वो पार्ट था ही नहीं, राइट ऐसा ही था ना, बिल्कुल लिटरली ऐसा। मैं हमारे सामने, मतलब मेरे सामने एक दिन के लिए मैं गया था, मैंने खुद ये देखा और वो शहरी ने कहा हाँ यार ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो उन्होंने उधर ही बैठे बैठे ये बस सोच लिया कि ये करना है एंड दे डिड इट। बिकॉज शुरू के 3-4 जब उसने गाए तो उसमें वो नहीं था, आखिरी बार में उसमें था। हाँ ओके सो या तो इस प्रोसेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जैम फारिस के साथ नहीं हो पाया, तो साउंड चेक पे डायरेक्ट फारिस के साथ जैम था। और जब वो हुआ ना, तो जब पहली बार बजा तो आई वाज लाइक यार ये कुछ स्पेशल और ही बन गया। हाँ ओके, कुछ खतरनाक कुछ बन गया, राइट। वो एनर्जी से समझ आ गया था। एंड अच्छी बात ये कि आई मीन आई मेट फारिस फॉर द लाइक तीसरी दफ़ा मिला था शायद। वैसे मैं मीशा के थ्रू 1-2 दफ़ा ऐसे ही मिला था, बट वेरी जनरली, मतलब ऐसे ही बस मिल गया, हाय हेलो बस। तलहा से भी मैं उनके अपने गाने के जैम पे मिला था जब कोक की हो रही थी, फिर सेकंड टाइम मिल रहा था, और फिर उससे पहले जैम पे, तो तीन दफ़ा। बट द वे बोथ ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड इमोशनली इन द सॉन्ग, मतलब मेरे लिए वो एक मोमेंट था कि यार मैंने पहली बार फील किया कि यार मैं जितना फील कर रहा हूँ दूसरा भी उतना फील कर रहा है इस गाने को। यू नो ये मुश्किल होता है और कम ही आपको देखने को मिलता है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करो और वो आपके जितना ऑनेस्ट हो, यू नो। और वो जब साउंड चेक हुआ ना, वो उस टाइम शक्लें देख के समझ आ रहा था सबकी कि यार एवरीवन इज इनटू इट। कोई भी फेक नहीं कर रहा, कोई भी बस ये नहीं कर रहा कि यार निकालो गाना घर जाऊँ, कोई सीन नहीं था ऐसा। वही जो बात हो रही थी कि यार आर्टिस्ट के होते हैं अपने, कि यार ये वो ये करना है, ये चाहिए, मुझे घर जाना है, देर हो गई है। रात के 1 बजे, अगले दिन शूट था, 2 बजे कॉल टाइम था, 2-1 बजे, और हम रात के 2-3 बजे तक वी वर डूइंग द साउंड चेक एंड रिहर्सिंग। तो नो वन वाज इन अ रश टू गो होम। नो वन। हमने पूरा किया, सब कुछ लॉक किया कि हाँ फिट है, सेट है, और तो मैं टर्न्ड आउट अमेजिंग। आई मीन मेरे लिए तो मैं एक नया एक्सपीरियंस था टू वर्क विद आर्टिस्ट लाइक दीज। I honestly, like, me and Saifba had a podcast just where Saifba was like, rate your top 5 Coke Studio songs of all time. I sincerely feel, because of what it represents, not just because of how good it sounds. It sounds amazing to me. I've been listening to metal for 15 years now, rap since I was 9. I'm 29. 20 साल से rap सुन रहा हूँ मैं, right? So for me, obviously the sounds are so familiar and yet so different and so beautiful, but also what it represents, right? I mean, it's fucking ridiculous, man. Like, depression is at an all-time high, suicide rates are at an all-time high, divorce rates are at an all-time high. We're so connected and yet we feel so lonely. And in the middle of all that, people such as yourselves, people like Faris, like Karakoram, like Tala, who in their own capacities have cult followings. People don't just want to listen to your music, they want to listen to you, man. They just want to listen to you guys talk, right? For people who enjoy such prominence, to come out and say कि यार हाँ bro ठीक है कोई मसला नहीं है, you know. I think one of the most prominent songs that's ever been recorded, man. It's up there. It 100% is. I don't give a shit. People can, they're gonna argue with me. They can argue with me, but it is, man. And the proof is in the pudding. Think about how people are reacting to it, responding to it still, you know. रिव्यू वीडियोस अब तक चल रहे हैं। हाँ कुछ लोगों ने BTS भी बनाए थे बड़े खतरनाक किस्म के, माशाल्लाह से। And you know what was beautiful, again, when I spoke to Saif, I was like, you know, BTS, he's like, yeah, I resonate with how much it means to people. So it's not just BTS, right? I don't take it as I take it as short documentaries, right? It's because वही वाली बात है, आपने जो भी कहानी बताई with the writer and you in the garden, Zulfi Bega garden, we wish, everyone wishes they could see that. How can it happen like that? You know what I mean? But
देखो ना, अगर मैं होता उधर, अगर सैफ बा होते, if people could just stop fucking with सैफ जतोई, ये पार्ट तो मैंने कैप्चर करना था. हाँ, if you could just और ये stop. और मेरी शेरी की इंटरनल एक हुई हुई है कि शेरी देख ले. हाँ, अब तो इसने ये भी बताया जुल्फी भाई के घर भी रोका है, तो शेरी अब तो बेटा तुझे माफ नहीं करने वाला मैं. देखो मेरी बात सुनो. All I'm saying is, if Saif Jatoi happened to be there, Saif Ba also enjoys the occasional cigarette, right? If the writer wanted to smoke, Saif Ba would also have wanted to smoke. You know, Sherry would have been there. It would have been happening. Conversations would have been happening, right? नहीं, बट आई वाज लकी इन द सेंस कि मैं एक दिन पहले, वो जो 2 दिन पहले जैम हुआ वो देखा मैंने. ओहो, इवन दो इंटरनली ऊपर से आ रहे हैं ना बा, ऊपर से आ रहे हैं. काजी इंटरनली सही बात बताऊं, जब मैं वहाँ पहुंचा था ना, जब जैम हो रहा था, ऐसे ही उधर लिखा था कोक स्टूडियो, आई वाज लाइक fuck man. Yeah. Even though मैं इनके साथ पर्सनल कैपेसिटी में आया था, Yeah. कि शेरी वाज काइंड इनफ कि हाँ भाई तू आजा कर ले, तो बट यू नो जस्ट एज अ बिग फैन ऑफ कोक स्टूडियो, ऑब्वियसली एवरीवन इज इन पाकिस्तान. Yeah. तो जब मैं खुद बैठा था, जब मैंने वहाँ देखा कोक स्टूडियो, आई वाज लाइक फक. Yeah. वाओ यार. No, the first time the Coke Studio, listen, and I'm not geeking out, by the way. I don't care. For me, because even when we spoke on the live for the first time, I was like, about damn time, man. About damn time. Like, fucking Elane Jang nahi suna aap logon ne, ya aapne youngsters ke gaane nahi sune, ya aap Faris ko nahi jante. What the fuck were you guys doing, right? So for me, it wasn't like that. But when they, still, even for people like me, when they finally announced ke Karakoram, the Stunners, Faris, Hassan Rahim, right? Talal Qureshi, Eva B, all these people, I was like, yes, you know, cultural moment. Yes, man. Yes, finally. क्या बोलते हैं, अली अज़मत ने बोला था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, अल्लामा इकबाल ने लिखा था, और फिर अली अज़मत. It's that, man. It's really that. जवानों को पीरों का उस्ताद कर, man. Come on now. You know? So for me, it was that. It wasn't, and to that end, you know, if Saif Jatoi would have been in that garden, I'm just saying. अगले साल I'm just saying, man. That's all I'm saying. You know what am I saying? I'm not saying anything else. But anyhow. So it comes out, you know, all this chaos, all the chaos that goes into it. How do you feel now? You know, when it's still being like sitting here listening to me talk about it, like it's because it is a cult classic all of a sudden, instantly. How do you feel? I'm supercharged. Yeah. I mean, we're like full on work mode now. Oh, this is the beginning? मतलब अब पहले तो था ना कि यार गाने बन रहे, but अब it's like अब नहीं रुकना, right? Inshallah. Because एक चीज़ हो गई है. Yeah. It's not the end of it. Yes, एक achievement. Coke Studio गाना आ गया. Have to prove ourselves every time now. हर गाना, अगला गाना भी आएगा. It has to be near. Benchmark set हो गया for us, you know. तो pressure. Yes. But full on motivated कि यार ये करना है, गाने बनाने हैं, collaborate करना है. Even like अभी 12th को यहाँ show था हमारा, 13th को we shot a video and we collaborated with an artist. And are we at liberty to say who? I mean, he did post a story. Come on, what the fuck, man? Come on. Story डाली तूने बाकी? स्टोरी डाली हुई है. अबे तूने देखी तो है स्टोरी. नहीं गाते हुए यहाँ कुछ करते नहीं, हैं. नहीं. अच्छा चलो मुझे एक चलो हाँ, खैर वो हाँ, एक अबे आर्टिस्ट मैं है. कोई 50 लाख फॉलोअर थोड़ी है. 300 बंदों ने तस्वीर देखी है. तो एक आर्टिस्ट है. like all in Yeah. and fully you know charged के यार because होता है naturally होता है कि जब आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है, you get messages daily गाने के बारे में, और you know for people appreciating how I sing और सारा कुछ जो भी एक जो इस तरह के आते हैं, तो आप रोज़ जब पढ़ते हो ना, आपको एक डोज मिलता है, एक चार्ज मिलता है, और वो फिर आप कहते हो कि बस करते रहना है. Has this, I mean, I'm sure you must, because you've been a producer and you weren't always into metal, but has this encouraged you to think like you want to collaborate with people not from the same genre even more? Yes. या ये हमेशा से था? नहीं था. हम तो कोलैबोरेशंस करते ही नहीं थे. I mean, हमारे थे कि हम बस अपने गाने बनाते रहे. Okay. But after Coke, हमें समझ आ गई कि यार That's the way forward, yeah. हाँ, और ये सिर्फ एक दिमागी चीज़ होती है कि यार ये जॉनरा है, ये जॉनरा है. अब तो आप लाइक पहले होता था कि
फेज आता था जॉनर का, राइट? रॉक, डिस्को, पॉप, एक पूरे एराज है. अब इस वक्त देयर इज नो एरा, राइट? No. देयर इज लाइक बस सब हो रहा है, This is the digital age. कुछ भी हो Everything सकता happens, है. yeah. मैं तबला उठा के एक रॉक गाने में डाल दूँ, वो एक नया बन जाएगा कुछ. ढोल उठा के किसी और, तो आप कुछ भी कर सकते हो. सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंडलेस कोलैबोरेशंस. आई मीन आप करें आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट. So okay, so don't talk to me about, because you can't, talk to me about who you are collaborating with. Who would you want to? What's one, just the craziest name? Throw out the craziest fucking name out there. Who would you want to? Mike Shinoda, man. I mean, Come on, the man. end. Yeah, that's what you game. want. मैं खुद वरना मैं तो मैसेज भी कर Chester चुका हूँ होता उनको. हाँ. कोई रिप्लाई नहीं. खैर, कोई मसला नहीं. but दूसरा करेंगे. we're at it. हाँ, दूसरा मैसेज करेंगे. वो एक कोलैबोरेशन है जो कि I mean, I don't know. Sure, inshallah. चेस्टर जिंदा होता तो ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन लिंकन पार्क, आई गेस. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. So you want all of Linkin Park? Yeah, but you want M. अगर Shinoda. मिल जाए. हाँ, जो मिल जाए. अल्लाह ना कोई भी करे एक आ जाए तो मिले वो भी अभी काम लिंकन चल पार्क, जाएगा. उसके लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा अल्लाह इसको. रहम, अल्लाह रहम करे. You know what we mean. अब Local context? we are planning to collaborate with Everbee. There's a song that we're working on वो करने का Beautiful, plan है. beautiful, inshallah. I contacted Bhatt साहब, Ali Azmat. उनके साथ भी we will be making songs probably after maybe रमज़ान के बाद या उससे पहले अगर टाइम मिलता है उनको, उनके साथ टाइम मिलता है तो. Oh, dude, you know what? I'm a big Ali Azmat fan. I know he's had a crazy history, man, and you know, unki trajectory's been all over the place. He was the original rock star. He really was, you know. Yeah, dude. Ali He Azmat, is, man. I mean, yeah. He is. Allah hayati de unko. He is. Yeah, of course. One more. Come on, give me one more. I'm enjoying this so much. नहीं, वो बताना कि तेरे हिसाब से बस ड्रीम पाकिस्तान में अली अजमत ऑफ कोर्स वुड बी, बट अभी जिससे बात भी नहीं चल रही, समझ रहा है? अभी तो ये अली अजमत के साथ तो बात चल रही है तुम्हारी. Abda Parveen. We would love to collaborate with young stanners too. तला के साथ तो किया, but with the band to see what happens. Who would you want to produce that? You would want Joke to produce that, or would you? Would love to collaborate. Oh. Because वही बात है ना कि there's no, अब वो जो हम एक बॉक्स में रहते हैं ना कि यार खुद करना, किसी और के साथ नहीं करना, बस हमारा साउंड है ये, उससे कोक ने हमें सबको, everyone in the band, सबको एक चीज़ रियलाइजेशन दी है कि यार आप हाँ अपना साउंड रखें, बट बी फ्लेक्सिबल. आप तभी इवॉल्व करेंगे विद योर साउंड, आप इम्प्रूव भी तब करेंगे और आप एडिशन होती रहेंगी चीज़ों की. इवन विद द न्यू सॉन्ग्स दैट वी हैव डन अभी रिसेंटली, कोक के बाद हमने कोई वी हैव रिकॉर्डेड लाइक 3 to 4 songs. Holy shit. हाँ, सो जिसकी एक की वीडियो अभी कल की एक शूट हो चुका है, वो रमज़ान के बाद आएगा. सो देयर इज दिस म्यूज़िक शो कमिंग आफ्टर रमज़ान कॉल्ड क्रिस्टल रिकॉर्ड्स. Okay. जो कि जिसमें ओरिजिनल म्यूज़िक हो रहा है और उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. तो उसमें भी एक गाना है हमारा, वो शूट हो गया, सब कुछ हो गया. तो वो सारे गाने बड़े अजीब तरीके से बने हमारे, विच हैव दीज इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स, बट एट द सेम टाइम देर लाइक हार्ड हिटिंग, कराक्रम स्टाइल है उसका, बट एक फ्रेश साउंड है. That's beautiful. सो वो उसके लिए बड़ा एक्साइटेड है. Yeah. नहीं, इवन द सॉन्ग यस्टरडे जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, Yeah. वो काराकोरम प्योर गाना है ही नहीं. एटलीस्ट जो मैंने पार्ट सुना बिल्कुल भी नहीं है. वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एलाने जंग. बिल्कुल अलग टेंजेंट पे. बिल्कुल. एंड फनी फैक्ट कि वो मैंने खुद किया. ये भी नहीं कि मैंने किसी से करवाया हो या बिकॉज सो वो एक चीज़, एक साइड अनलॉक हो चुकी है, विच इज़ हेल्पिंग अस टू स्कल्पचर आवर साउंड इवन मोर. तो वो उससे बड़ी हेल्प हो रही है. या That's fantastic, man. I don't. This doesn't happen to me a lot. I'm at a loss for words. It's fucked up. आना चाहते हूँ. ये पता है, जब ये दुनिया रिलीज हुआ जिस दिन, ऑब्वियसली फटेरी सच्ची बात है, नर्वस बहुत होगी. मतलब क्या सीन है, आएगा, लोग कैसे रिएक्ट, शुरू के कमेंट्स सभी पढ़ते, जाहिर है यार, इंसान है सब, कितना ज़्यादा आप क्रिएटिव प्रोसेस में तो यही होता है. तो वो फीलिंग कैसी थी जैसे रिलीज हुआ, और इनिशियल रिएक्शंस लोगों के, कॉल्स आई होंगी लोगों के, वो सब आए होंगे, वो कैसा रहा? ऑनेस्टली
एग्जैक्ट फीलिंग ऐसी थी जैसे रिजल्ट आने वाला होता है ना, वो वाली फीलिंग थी. तो आई रिमेंबर कि जब वो आने वाला था गाना तो मैं वेटिंग लिस्ट में भी बैठा हुआ था. वो होता है ना वो जो प्रीमियर से पहले एक लिस्ट बन जाती है, इसमें लोग आके बैठ जाते हैं, और मैं वहीं से पढ़ना शुरू हो गया ना कि यार क्या, हालांकि अभी गाने नहीं है पर मैं अभी से ही कमेंट्स पढ़ना शुरू हो गया कि that's really bad for you. It wasn't good. No, सही है ना, it's मतलब horrible. बिकॉज उस वक्त तो ऐसी कुछ आया भी नहीं था, बट मैं बड़ा साइक था. पर जब आया एंड यू नो कमेंट्स पढ़ना शुरू किए एंड आई वाज लाइक यार ये तो, बिकॉज एक चीज़ बड़ी सर्टेन थी. मैंने बैंड में भी बॉयज़ को बोला हुआ था ये कि देखो हमारा गाना है, ठीक है, बट द आर्टिस्ट दैट आर बीइंग फीचर्ड विद अस, इनकी फॉलोइंग बहुत लीथल है. It's Right? lethal. Yeah, absolutely. यंगस्टर्स की आर्मी है, Yeah. फारिस की फॉलोइंग है, राइट. Yeah. We're still small Relatively, compared to yeah. you know their following. तो इस चीज़ को वो नहीं करना, ये नहीं सोचना कि यू नो कि लोग उन्हीं की बात करें. होगा ऐसा बहुत दफ़ा होगा, लाइक मेजॉरिटी होगा, बिकॉज फैंस हैं उनके, राइट, एंड दे विल कम, और वो होगी बात. तो मैंने सबको मेंटली प्रिपेयर किया होता है कि देखो अगर नहीं भी होती ना कोई बात नहीं, मतलब अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता बैंड को, होता है ना अक्सर क्या कोलैबोरेट करते हैं, कोई एक वन ऑफ देम आउटशाइंस या उस एक की बात ज़्यादा हो रही थी, इस तरह होता है. तो ऐसा भी होता है. फेयर भी होता है लोगों को कि यार मुझे स्पॉटलाइट नहीं मिली सही से, इस तरह की चीज़ें होती हैं. ऐसा होता है. बट जस्ट टू क्लियर एवरीवन्स माइंड, मैंने एक मैसेज करा ग्रुप में कि यार देखो गाना आ रहा है लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि यार यू नो. शरीफ भाई चलो ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि व्हेन पीपल कंज्यूम दैट पीस ऑफ आर्ट ना, समटाइम्स परफॉर्मेंसेज आर सो पावरफुल, राइट, दे आर जस्ट सो स्ट्रॉन्ग. जब ये इतनी बार ये बोल चुके हैं, आपकी जो चीख थी आखिर में, sometimes the performance is just so strong कि even their fans then kind of come to you, यार ये कौन है ये. and that happened and that's why it was मतलब मेरे लिए बड़ा एक वो था कि यार शुक्र है यू नो कि फैंस एक तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग फैंस तो थे ही थे, बट न्यूट्रल लोग, बिकॉज मैं रिव्यूज़ भी जब देखता था सबके नाम लेते, तला अंजुम यस वी नो, तला अंजुम फारिस यस वी नो, कराक्रम नो वी हैवंट हर्ड ऑफ कराक्रम, यू नो. 90% रिव्यूअर्स didn't know us, but when the song ended they used to look up, right? So that was a win. अल्हम्दुलिल्लाह. या So वो एक जो था ना मेरे लिए वही बहुत था कि यार people are looking up, गाना सुन के देर लाइक उनको हिट किया, और यू नो ऐसा नहीं हुआ कि सब बड़े इक्वली अप्रिशिएट हुए इन द सॉन्ग. सो वो एक मेरे लिए बड़ा एक What a beautiful time, man. From like you know वही वाली बात है, हम ऐसे ज़माने से हैं जहाँ पे मेटल होता था, you know, and Linkin Park was an exception, sure, and Jay-Z ने भी एक वो बनाया था पूरा जो एल्बम थी उनकी जिसमें हाँ ऐसे कुछ Collision Course, हाँ ऐसे कुछ काम हो जाते थे कभी कभी, but for the most part and especially in this context, पाकिस्तान के context में हमें we love categories. लगे हाँ ये मेटल है, ये हार्ड रॉक है, ये सूफी है, ये कव्वाल है, ये सेमी क्लासिकल है, ये फुल क्लासिकल है. आई डोंट नो द डिफरेंस, आई स्टिल डोंट नो द डिफरेंसेस, बट ये सेमी है, ये फुल क्लासिकल है. सेमी में जो है सेमी थोड़ा कम होगा ना, क्लासिकल सेमी थोड़ा ज़्यादा होगा ना, सेमी में थोड़ा एक्स्ट्रा ये होता है ज़्यादा थोड़ा. तो जो है आई जस्ट एंड यू नो एंड अगेन for people to just be like, dude, this just sounds fucking amazing, and that's all there is to it. Yeah, man. Cultural moments, man. Sherry Khattak with the cultural moments. What's it? But do you like, you know, now you're okay, you've resigned yourself कि नहीं अभी काम शुरू हुआ है, अभी आगे जाना है इंशाल्लाह. Do you miss Karachi for that? Because अब कराची में भी बहुत सारा काम हो रहा है. मज़े की बात है कि हम एज अ बैंड हमने कराची में सबसे ज़्यादा शोज बजाया. Obviously, Karachi is the best. 100%. तो obviously attachment है. It's like our hometown, you know. And मैं अभी आज ही मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तो जब मैं वापस आ रहा था तो यही सवाल जो आपने किया वो फिदा डायरेक्टर जो है वो फिदा मोइन, उसने मुझसे पूछा कि यार तू कराची मिस करता है. उसने यार होता क्या है कि मैं जब लाहौर जाता हूँ ना 1-2 महीने के बाद मुझे एक होता है कि यार मैंने जाना है वापस कराची वापस आना है.
वो हो जाता है खुद ही ऑटोमेटिकली कि शोज़ आ गए, कुछ हो गया, ट्रैवल हो गया, बट एक पॉइंट आता है कि मुझे वापस आना होता है एंड आई हैव टू कम बैक. Yeah. तो ऑब्वियसली Yeah. ये तो भाभी यहाँ की है वहाँ की है. यहाँ की है. तभी तो फैमिली भी है ना. हाँ हाँ फैमिली 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 बस ठीक है हाँ हाँ सही है. हाँ शेरी भाई हाँ कराची बुला रहा है आपको पूरा. लेकिन पता है क्या, so I did, देखो at such a young age mashallah, so you've experienced so much, you've played all across the world, right? Would you ever consider moving abroad? Because yours is a skill set that could get you employment anywhere. And सही है कराची बहुत अच्छा है और लाहौर भी बहुत अच्छा है, but यहाँ के हालात जो हैं they've not always been this good. Because I'm trying to refer to Faris. Faris on his Instagram stories shared a photo of you before it was even Karakoram, but before it was anything. Fucking no facial hair, no muscle tone, in a Wrangler, old school 2010, circa 2010. Yeah. And then वो photo थी और ऊपर ही वो photo लगी हुई थी अभी आपकी with the whole band in Coke Studio. And you know, so you've seen all of what goes on. Have you ever considered not living here in Pakistan? नहीं. Never, because you've played all over the world. ऑब्वियसली हर जगह की एक स्पेसिफिक बात होती है, आपको एक्साइट करती है. हर जगह आपको कहती है कि यार वाह क्या जगह, यहाँ रह लेता हूँ. बट दिस थॉट नेवर केम टू माई माइंड बिकॉज एक चीज़ जो कि बुरी क्या मतलब एक अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पर एक वैक्यूम है यू नो चीज़ों का. बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा होती हैं. Sure. एट द सेम टाइम इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर people to Sure. come in. तो मैं पाकिस्तान को एज लैंड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हुई यू नो. तो आई थिंक वी हैव अ बेटर चांस टू डू म्यूज़िक हेयर दैन डूइंग इट विद हो रहा है दबा उससे पर्सनली शायद मुझे सेटिस्फाई ना करे वो चीज़. हालांकि मुझे शायद बेहतर ऑडियंस मिल जाए, बेहतर शोज हो जाए, बट वो दैट वोंट चेंज एनीथिंग विद in a broader perspective. I think legacy यहाँ तुम्हारी जो main चीज़ है वो I hope, I mean I wish to change something here. And उससे वो यही होगी. और and I think potential यहाँ पर इनफाइनाइट है यार. मतलब क्या टैलेंट है यहाँ पर, राइट? एंड इट हैज़ टू बी शोन टू द वर्ल्ड. इट्स अबाउट टाइम यार. It's about time. ऐसा नहीं है कि नहीं है टैलेंट, सब कुछ है एंड मेहनत भी करते हैं लोग. इट्स बस वो है ना कि इमेज एक बना हुआ है, तो उस वजह से. लेकिन शायद भाई टांगे खींचने वाले भी तो बहुत है. बिल्कुल है, बट डजंट मैटर. Does not matter. डजंट मैटर. आई मीन आई हैव रियलाइज्ड नाउ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब तक बीच की टांग ना हो तब तक. this is why he showed up. आप समझ रहे हो ना बात को. He came over for this. Drop it. But no doubt अब तो माशाल्लाह I think यार he's done work in Nescafe Basement, Coke Studio, 2 सबसे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके. इससे बड़े तो कोई भी नहीं है. अपना बैंड भी माशाल्लाह खड़ा हो गया है. रिकग्निशन अपनी इंडिविजुअल लेवल पे भी आ गई है. I think sky is the limit now, yaar. Inshallah. Which is ridiculous, na? You've so far in detail we've gone over how difficult it was to get here. But people need to realize this: that it's not it's the journey. It's not a goal, right? It's not an end. It's not a destination. ये नहीं है कि Coke Studio पहुंच गए तो अब खत्म हो गया. बिल्कुल. You won't ever get to Coke Studio like that. You'll never get anywhere like that. You have to fall in love with the journey. Throughout it all was the point. Doing all those things, writing all those sessions, editing, all those, sleepless nights, waking up in the morning, staying up late at night, all of that was the point. बिल्कुल. The point wasn't आपने सही ना, because here's the thing, right? ये मैंने सहबा को बोला था कि by the time you got to ये दुनिया, it was so beneath all of your skill sets individually कि it, in terms of like a physical toll, in terms of like playing the song physically, it mustn't have been anything. Singing for you or for Zen, P or for Bilal or any of these people or Tala or Faris. But for any of you guys, to do it,
it was muscle memory, man. I was like, sahi hai, haan, ho gaya. But it was everything else that led up to that. Am I making, yeah? Is that- बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल सही बात की कि जो लोग सोचते हैं ना कि यार ये हो जाए तो बस यू नो हाँ सेट हाँ आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है हाँ जो प्रोसेस है ना yeah. तो वही सब कुछ है एंड आई थिंक दैट्स द ड्राइव जो कि हमें भी एक तरह से कांस्टेंट उस पर रखती है कि यार बिकॉज आई रिमेंबर जब कोक वाला भी जब हो रहा था तो मैंने इनको कहा था हाँ इट्स अ बिग थिंग मतलब बहुत बड़ी बात है पर एक गाना है राइट दुनिया देखेगी मैप में आ जाएंगे लोग इतनी व्यूअरशिप हमें शायद ज़िंदगी में कभी ना मिले बट एक गाना है और हमने 100 किए हुए हैं पहले और हमने आगे 100 और करने हैं इंशाल्लाह तो वो एक पोर्शन है सो ये एक चीज़ अच्छी थी कि वी ऑल रियलाइज उसके बाद हमने यू नो स्टार्टेड वर्किंग मोर और उस तरह करके और गाने तो बात वही है कि बस चलते रहना है रुकना नहीं है और हैव टू बी कंसिस्टेंट when all this stuff happened and you know such people जो आप बोल रहे हो you know crossover fans all this and that when they get in touch with you is there something a comment a message that अब तो इतने सारे आ गए होंगे माशाल्लाह से but is there something that sticks with you कोई ऐसा random कोई boy हो या girl हो जिसने ऐसी कोई बात बोल दी हो you're like what the fuck dude you know some positive obviously एक दो हैं बहुत लीथल मैसेजेस जिन्होंने मुझे लाइक तबाह कर दिया मैं आई क्राइड मतलब इट फक्ड मी अप मैन आई मीन मतलब और आई मीन आई शुड रीड yeah you probably should read आई शुड one रीड वन एक मैं बिल्कुल एक पढ़ेंगे उफ अल्लाह रहम करे बहुत लीथल था आई डोंट नो एक मिनट I don't know इसी what तरह I don't know what मैं I've just बताता हूँ I don't know what I just signed up बल्कि for उसका काराकोरम से ताल्लुक नहीं है बट कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपकी फट जाती है जैसे अपना शहरी ये बयान का गाना है तेरी तस्वीर या इट्स वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स ज़बरदस्त गाना अनबिलीवेबल सॉन्ग हम उसको प्यार मोहब्बत के पर्सपेक्टिव से सुनता था मैं शुरू से कि भाई लड़का लड़की वाला गाना है तेरी तस्वीर ये वो मैं ऐसे ही कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक बंदे ने नीचे लिखा था उसमें कि माय मदर पास्ट अवे एंड जब से मेरी माँ मरी है मैं सिर्फ ये गाना सुनता हूँ और उस गाने के जब अब लिरिक्स फिर मैंने उस पर्सपेक्टिव से सुने मेरी बिल्कुल हर्ट के हाथ में आई स्वेयर टू गॉड आई लिटरली वाज अबाउट टू क्राई मेरे रोंगटे खड़े हो गए मैंने कहा यार ये क्या बोल दिया इस बंदे ने बैठे बैठे बिकॉज उसमें ऐसे लिरिक्स हैं अभी दिमाग मेरा नहीं चल रहा आप अभी अपना बताओ message please यार ये बहुत हैवी यार कौन से गाने पे क्या है बताओ ये दुनिया पे ये पार्ट पता नहीं यार you want me to read it I can read it for you नहीं बता भाई बता खुल के क्या बोल प्लीज yeah I'll read it for you it's fine Allah khair करे okay ये snapshot है ना I don't have to do anything या okay do you want me to say the name as well नो we're not saying the name right but you know who you are how is Tala Anjum going to tell me agar koi nahi hai tera to meri jaan tera Allah hai and Fire saying call me on my phone because you're not alone the same day I was going to end my life I mean fuck yaar you know I don't know हाँ यार so yeah shit डैम ये पावर है भाई गाने की हाँ ये गानों की यही तो गेम है सारी हाँ बा असल चीज ही है but पता है क्यों क्योंकि so my habitual defense mechanism to stop myself from crying is always intellectualizing things but I will उसमें कभी कभी कुछ ऐसा अच्छा आ जाता है किसी को अगर कोई मदद हो जाए अल्लाह रहम करे most philosophers most psychotherapists existential psychologists जो भी होते हैं ना often they link thoughts of self-destruction to a lack of meaning right and the thing with meaning or the beauty with meaning is there's never ever been a set category for meaning it was a blue guitar across the sabzi wala stand right it's a hating a bank job and then picking up a camera it's you know watching a white I don't know a white old American person having conversations with people meaning could be anything
So meaning could 100% be 3 of your favorite musicians playing a song on the biggest platform of the country. 100% meaning could be that, right? बिल्कुल. It's just about, and to that end, I do feel sometimes like it's unfair for the rest of us to expect that of you guys. You know what I mean? Because sure, okay, you're a nice guy, but I mean, does it, you know, it must burden you guys कि यार, when you hear stuff like that, कि यार क्या मतलब है, what the fuck, man? You know, I'm just here trying to fix this riff, man. Like I'm just here trying to fucking, you know, because वो 2 boys चले गए थे और हम अपना गाना नहीं बना सक रहे थे और हमने ये भी सोचा था कि हम गाना बनाते ही नहीं है, bro. और अब आप ये बातें कर रहे हो. नहीं बस, you know, पता नहीं यार. Yeah. हिला देता है. हिला ही देता है. Shariva, this has been fantastic. Amazing, man. Thank you. You're going tomorrow. Thank you for doing this on such short notice. But we'd love to have you back whenever you feel like it. जब भी आओ. So Sherry Khattak on Instagram and Karakoram Official on Instagram. Yeah. Right. You guys are on YouTube. Karakoram on YouTube. Karakoram Official. Karakoram Official, yeah. आप लिंक्स दे देना, मैं भेज दूंगा. आप भेज देना, मैं डाल दूंगा. Okay. ठीक है. हाँ, ऐसा कर लेंगे. All the power to you. अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह. काजी, अब शेरी की जिम्मेदारी बनती है कि बिलावल को भी यहाँ हमें भेजे कि वो यहाँ पॉडकास्ट करे. जो आना चाहेगा वो आ जाएगा. और सबसे मेन जुल्फी भाई. बिल्कुल. हाँ. If any of them feel like coming, my doors are always open. थर्ड पर्सन की तरह बोल सकता हूँ. आप तो जो मर्जी आप बोले. नरेटर की तरह. सिर्फ बदमाशी होती है सैफ. बाकी सैफ पता है क्या, before ये दुनिया even happened, before any of this even happened, he's like, why have you not called Sherry Khattak onto your podcast yet? Right? And that's when I asked him a question. I'm like, who's Sherry Khattak? right? And then he's like, कराक्रम के गाने नहीं सुनते, मैं वो सुनता हूँ, सारे सुनता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं. He's like, तो कौन गाता है कराक्रम में, ब्रो? ब्रो मुझे क्या पता. मुझे क्या पता ब्रो. लाइक अच्छा गाता है बंदा जो गाता है. It's like वो Sherry Khattak है. So सैफ बात तो he's been an advocate, you know, throughout. Of course. And the thing is, he wasn't wrong, you know. He's been screaming at the top of his lungs and he was right, you know. So anyways, wonderful. And if anyone else wants to come, obviously, inshallah, you know. But thank you for everything that you do. No man, thank you for having me. नहीं ब्रो, बहुत मजा आया. मजा आया आपको? बहुत मजा आया. बीच में पॉडकास्ट रुक गई, बीच में कैमरा उठ रहा. एक बंदा वॉशरूम में गया सीधा निकल. ऐसा होता है ब्रो. भाई हाँ पूरा सेट गंदा करता क्या? नहीं, सेट गंदा ना करे. सैफ भाई, any finishing comments for you? नहीं यार, it's been amazing. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं कब से चाह रहा था कि शेरी की पॉडकास्ट हो दोनों के लिए, कि मज़ा आता है. कॉन्वर्जेशंस मुझे पता है ऐसी होंगी, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वेरी मतलब ऐसा बंदा है जिससे गपशप में मज़ा आता है. हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी कि मैं इसका भी हिस्सा बन गया. अल्हम्दुलिल्लाह. जुगाड़ में सरप्राइज गेस्ट. सरप्राइज गेस्ट. I wonder what इंशाल्लाह खैर से ये सब एडिट वीडियो पोस्ट करने में क्या लिखूंगा मैं. एंड ऑल्सो सैफ जतोई फीचरिंग सरप्राइज गेस्ट, featuring the musical talents of सैफ जतोई. बिल्कुल. नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, it was great यार, मज़ा आया. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा day 1 है कीटो का, तब भी देखो आ गया मैं. हाँ, तब भी देखो. हाँ, the first day of बात है, keto, बड़ी that's a lot. That's a fucking lot. Sherry Khattak, Kazi Akbar, सैफ जतोई. अस्सलाम वालेकुम.